તમે આ બહાના એટલે રીઝન, કારણ. ગુજરાતીમાં પ્યોર કહીએ તો બાનું. મારા આરટીપીમાં આવું તું પણ બાનું. તમે બહાના પણ બનાવી શકો છો ને તમે પૈસા પણ કમાઈ શકો છો, પણ તમે આ બંને કામ એક સાથે કરી શકતા નથી. આટલું ધ્યાન રાખજો. તમે જ્યારે જ્યારે બાનું બતાવશો ત્યારે યાદ રાખવાનું કે તમે પૈસા નહીં કમાઈ શકો જીવનમાં, કોઈ પણ કામ માટે. એ તમારો પર્સનલ બિઝનેસ હોય એમાં બી જ્યારે તમે રીઝન આગળ કરી દીધું ત્યારે રિઝલ્ટ નહીં હોય ક્યારે. જો રિઝલ્ટ જોવો છે તો રિઝલ્ટ બાજુ મૂકી દો, રીઝન નહીં, કોઈ રીઝન નહીં. सेल्फ ग्रोथ इक्वल टू इनकम ग्रोथ, मतलब हमें हमारा खुद का ग्रोथ करना है. घना लोगों जोड़े जઈએ એટલે આવું બોલતા, શું સાહેબ પૈસા તો ઘણા લગાવવા, ધંધો બહુ મોટો કરવો છે, પણ પૈસા તો હોવા જોઈએ ને. મારી જોડે પૈસા જ નથી. આ બીજું સૂત્ર આપણું પોતાનું બનાવ્યું, ક્રિએટેડ બાય ભરત ચૌધરી. નો મની ઇક્વલ ટુ નો ઇન્વેસ્ટ મની ઇક્વલ ટુ નો મની. સિમ્પલ. તમારી જોડે પૈસા નથી તો તમે પૈસા લગાવતા નથી તો ક્યારે પૈસા આવવાના નથી. સિમ્પલ છે. પૈસા નથી એટલે તો પૈસા લગાવવાના છે, કરોડો લગાવવાના છે આપણા બિઝનેસમાં. ના નાના નાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, નાના નાના રોકાણ, પૈસા લગાવવા પડશે. શું કરવા માટે? શીખવા માટે. બરાબર. તમારો પોતાનો ગ્રોથ કરવા માટે. જ્યારે જ્યારે એવી આરટીપી હોય, ઓટીપી હોય, કોઈ સારી બુક્સ હોય, કોઈ સારો કોઈ ટ્રેનરનો સેમિનાર હોય, કોઈ બી ઘણા બધા ટ્રેનર છે જેના ઘણા બધા વર્કશોપ ઓનલાઈન ઓફલાઈન થતા હોય છે. લગાવો પૈસા. મારા જીવનમાં ટ્રેનિંગ લેવા પાછળ અત્યાર સુધી મેં 10 લાખ રૂપિયા વાપર્યા છે. કેટલા રૂપિયા? 10 લાખ રૂપિયા ખાલી શીખવા, ટ્રેનિંગ બોલે. 2014 મેં ટ્રેનિંગ લીધી હતી, 1,55,000 રૂપિયા ફીસ હતી. કેટલા રૂપિયા? 1,55,000 રૂપિયા. ઇનપુટ ઇક્વલ ટુ આઉટપુટ. તમે જે ઇનપુટ આપશો ને એ શું નીકળશે? આઉટપુટ. 2014 માં મેં જયારે 1,55,000 લગાયા ત્યારે ઘણા મને ગાંડો કરતા, હું કે 1,55,000 હાથ દાડા તો હું શીખવાડ દે, મને ખબર નહીં, પણ મેં લગાયા પૈસા. એટલે પૈસા શીખવા માટે લગાવવા પડશે. ડેવલપ યોર નોલેજ એન્ડ સ્કિલ. પૈસા કમાવા માટે પૈસા જોવો ને જમાનો જુદો થઈ ગયો, જૂનો છે. આ નવું સૂત્ર છે. પૈસા કમાવા હોય તો શું ડેવલપ કરો? તમારું નોલેજ વધારો, અને બીજું શું વધારો? તમારી સ્કિલ. પૈસા ઓટોમેટિકલી તમારી જોડે આવશે. નોલેજ એન્ડ સ્કિલ. ડેવલપ યોર નોલેજ એન્ડ સ્કિલ. એના માટે તમે ઇન્વેસ્ટ કરો. આ ધંધામાં આવી જવાથી તમે પૈસા નહીં કમાઈ જવા. એન્જિનિયર કેટલા લોકો બને છે ને દર વર્ષે, કેટલા બધા સર્ટિફિકેટ જે તેની એન્જિનિયરના દર વર્ષે કેટલી બધી કોલેજો, તો બધા એન્જિનિયર પૈસા કમાય ना. પણ એ इंजीनियर जो रियल इंजीनियर बनो, जो वो इंजीनियरिंग में अपना नॉलेज बढ़ाता है, अपनी स्किल बनाता है, रियल इंजीनियर बनता है, वही पैसा कमाता है. खाली सर्टिफिकेट, जिस सेट में કેટલા છોકરા ખાલી સર્ટિફિકેટ લઈને બહાર નીકળે વિશાલ, એને 20,000 રૂપિયાની કોઈ નોકરી ના આપે, અને એક છોકરો એવો હોય કે જેને વર્ષે 15 લાખ રૂપિયાની જોબની ઓફર થઈ જાય, કારણ કે એને શું કર્યું? એની સ્કિલ सीखियो. अब આપણે આ બિઝનેસમાં આવી ગયા. बिजनेसમાં આવતા પહેલા, आने से पहले हमने आपको पूछा नहीं है कि आपने कभी सेल्स का काम किया है, आपके पास सेल्स का कोई एक्सपीरियंस है, फलाना डिम का पूछना, कोई कुछ नहीं पूछा, सीधा आपको ले लिया कि आ जाओ. तो अभी क्या करना है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कौन सा नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको कौन सी स्किल आपके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. आ तो आज एजेंसी लीधी, बैग लઈને નીકળ્યા, 10 જણાને ડેમો બતાવ્યો, 10 ને ના કીધી એટલે બે ગભરાય પર મૂકી દીધી. સાહેબ કોઈ નહીં જોડાવ, કોઈ નહીં હતું, બહુ મોંઘું પડે. कम से कम 6 મહિના 12 મહિના તો શાના મોટા આપવા પડશે તમારે શીખવા માટે. અને એ શીખતા શીખતા જેટલા મશીન આવ્યા એ બધો ફાયદો, નફો. માણસ કેરિયરની વાત કરો, કેરિयर. हाँ, હું તમને सिंपल समझाता हूं मैं आपको कि मान लो कि एक लड़का इंजीनियरिंग करता है, तो इंजीनियरिंग करने के कितने साल देने पड़ते हैं? मिनिमम 4 साल. तो 4 साल तक वो कुछ नहीं कमाता, खर्च करता है,
और 4 साल के बाद वो जाता है तभी मार्केट में उसको कोई 20,000, 25,000 या 50,000 रुपया दे। एग्री करते हो? तो 20, 25, 50,000 कमाने के लिए कितने साल देता है? 4 साल। यदि भी सीए बनता कितना समय लगेगा? 5-6 साल। मतलब जैसे सीए बन गए तभी जाके आपकी इनकम चालू हो गई। 20, 25, 50,000 शुरुआत में इतनी होगी ना, लेकिन वो 6 साल तक तो आपकी इनकम नहीं हो रही थी। तो क्यों दिए थे भाई 6 साल? इनकम तो नहीं हो रही थी। समझ में आ रही है ना मेरी बात? हाँ, ये चीज, ये मेंटेलिटी यहां बना हुआ कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, लर्निंग पीरियड में हूं। 1 साल तक तो मैं सीखूंगा, देन आफ्टर मेरा बिजनेस चालू हो। पेशेंस। हाँ, ખેડૂત જયારે ખેતરમાં જઈને બાજરી વાવે એટલે 3 મહિને જ પાક, એના પહેલા બાજરી ના આવે। એ 3 મહિના પેશન્સ રાખવી જ પડે। આજે વાઈને કાલે કેટલા આવ્યું तो मेल पड़ा? हाँ ना। तो आपको आपका नॉलेज और स्किल डेवलप करना है। आ कैलकुलेशन करे पछी, ये कैलकुलेशन करने के बाद ऐसे कितने लोगों को लगा कि मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा? कितने लोगों को लगा कि अगर मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है? अभी भी हम गलत है। मनी मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मनी मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मनी मैनेजमेंट શું કરશો? 1 લાખ રૂપિયા આવક છે તો 1 લાખમાં હું મેનેજ કરી લેશો? આવક તો ફિક્સ છે। प्रॉब्लम इज नॉट अर्न मोर मनी। मनी मैनेजमेंट नॉट अ प्रॉब्लम इज नॉट अर्न मोर मनी। हमें हमारी इनकम नहीं बढ़ा पाते, वो प्रॉब्लम है। मनी मैनेजमेंट वाला प्रॉब्लम नहीं। समझ लो कि आपका इनकम 50 लाख है 1 साल का, मतलब महीने का, और आप मैनेजमेंट नहीं करते हो तो हर महीने का जो आपका खर्चा 10 लाख होना चाहिए उसकी जगह पे 15 लाख हो जाता है। क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर ना? क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा है, इनकम बढ़ा दो। प्रॉब्लम है हमारी ज्यादा इनकम नहीं है, ये प्रॉब्लम है। हमें हमारी इनकम बढ़ानी है, बराबर। तो ये प्रॉब्लम के रूट तक हम जाएंगे, खाली बात नहीं करेंगे। हम मिडिल क्लास है, हमारी इनकम कम है, हमें इतने सारे ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ माइनस है, तो क्यों है? उसके रूट तक जाएंगे, बराबर ना? मूल सुधी આપણે જઈશું। तो सबसे पहला क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहला प्रॉब्लम है सिंगल स्ट्रीम ऑफ इनकम। हमारी जो इनकम का जरिया है वो खाली एक ही, सिंगल स्ट्रीम। एक बंदा कमाने वाला है और घर में 4 बंदे खाने वाले हैं। ઘરનું ભાડું એમાંથી જાય, મકાનનો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એમાંથી જાય, કારનો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એમાંથી જાય, કારનું ડીઝલ એમાંથી જાય, છોકરાની ફીસ એમાંથી જાય, લાઇટ બિલ એમાંથી જાય, બધું એમાંથી જ જાય। सिंगल स्ट्रीम ऑफ इनकम। अगर आपकी इनकम स्ट्रीम सिंगल है तो 100% आप प्रॉब्लम में हो। आपको आपकी सेकंड इनकम स्ट्रीम चालू करनी पड़ेगी। और यहां हमने आपको बुलाया है स्विमिंग पूल में नहाने के लिए नहीं, आपकी सेकंड स्ट्रीम इनकम चालू करने के लिए, बराबर ना? नहाने का भी टाइम देंगे, नहीं देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन पर्पस नहीं भूल जाना है कि हम यहां क्यों आए हैं, इस बिजनेस हमें क्यों, ये बिजनेस हमें क्यों करना है, ये बता रहा हूं मैं आपको कि आपकी सेकंड इनकम स्ट्रीम है वो हमें स्टार्ट करनी है। ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी, मतलब पैसा कमाने के लिए टाइम का ट्रेडिंग करता है। मतलब मैं 10 घंटा काम करता हूं तो मेरी 1 दिन की इनकम है 2,000, तो मैं क्या करूंगा सर? 12 घंटा काम करूंगा ताकि मेरी इनकम 2500 हो जाए। लेकिन कितना घंटा काम कर लोगे आप? कब तक आपके हाथ पैर चलेंगे? कब तक कर पाओगे? ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो पैसा कमाने के लिए तो ये भी एक प्रॉब्लम है, रूट्स का प्रॉब्लम है। अब देखो आपकी इनकम है, उसमें अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप जितना टाइम देते हो उस हिसाब से आपकी इनकम हो रही है तो आप प्रॉब्लम है। इसमें से सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैं भी प्रॉब्लम दिखा रहा हूं, आपको सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा। नो प्लान रोड मैप फॉर फ्रीडम। कभी ऐसा कोई प्लान ही नहीं किया है, इसके बारे में सोचा ही नहीं है। जो अभी आज हमने सोचा, आज आपको जो कैलकुलेशन करवाया, बराबर, इस तरफ कभी हमारी नजर गई नहीं। ये हमारा वीकनेस है। क्या है? और ह्यूमन बीइंग है कि आदमी जहां उसकी वीकनेस है ना वहां दिखना ही नहीं चाहता, और कोई इसको वहां दिखाने का ट्राई करता है ना तो वो गलत मान जाता है। शैलेश भी मेरे पास आके बैठेंगे और मेरी अगर वीकनेस पे ऐसे आके टच करेंगे ना तो मुझे अच्छे नहीं लगेगी कि बुरा आदमी है, मुझे ऐसा लगे। और शैलेश भी आके मुझे बुलाएंगे कि यार चौधरी साहब तुम्हारी बात तो ना તમે આમ મને મજા
मतलब मैं आपका मैं मोटिवेट भी कर सकता हूं। मैं खतरनाक मोटिवेटर हूं। इतना मोटिवेट कर सकता हूं कि आप जाके घर पे सभी एक डिवाइस दो तो डिवाइस बेच दोगे। लेकिन वो काम मेरा नहीं है। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। मैं आपको डेवलप करना चाहता हूं। आपको मैं बिजनेस पार्टनर मानता हूं कि आप डेवलप हो, आप पैसा कमाओ। मेरा काम मशीन सेल करना है ही नहीं, समझ लेना। मैं बहुत लॉन्ग विजन के लिए काम कर रहा हूं। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे से नजदीक, उनको मालूम है कि वो मैं मानता ही नहीं। आज मेरा बिजनेस मेरे कॉम्पिटिटर से शायद कम हो, ज्यादा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं ना, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। कि मैं आदमी के ऊपर काम करता हूं कि मेरे साथ जो बंदा जुड़ता है वो स्ट्रांग हो जाना चाहिए। मेरा बिजनेस तो अल्टीमेट स्ट्रांग होने वाला है। आज चाहे कम हो, लेकिन लंबी दौड़ है मेरी, छोटी नहीं। तो आपको मैंने क्या बताया, एक रोड मैप दिखाने का ट्राई किया कि आपका इतना सारा प्रॉब्लम्स में आप हो, लेकिन इस एरिया में इससे पहले कभी हमने सोचा नहीं और कोई प्लान भी नहीं किया है। कल हम प्लान करने वाले, आज खाली मैं दिखा रहा हूं। और इसमें से निकलने की कल सुबह में मेरा जो सेशन है कोई मिस मत करना। उसमें मैं आपको पूरा रोड मैप देने वाला हूं, प्लान देने वाला हूं। कॉपीकैट्स, नो पेशेंस। हम जो भी काम करते हैं ना, वो क्या करते हैं हम? कॉपीकैट्स। इसमें कोई पैशन नहीं है। हमारे गुजरात की खास करके बात करूं, कोई भी युवान को आप जाके मिलोगे, शू करो छे? सरकारी नौकरीની તૈયારી ऐसी जगह हो कैसे गवर्नमेंट जॉबની તૈયારી। બીજું શું કરો છો કે IELTS। હા, શું કરવા કરો છો કે હું પૂછ્યું તો હલવાઈ જાય તરત। અને બધા શું કરો છો એમ પૂછે છે, પણ શું કરવા કરો છો ને એવું કોઈ પૂછતું નથી। હા, હમણાં મારા મિત્રનો છોકરો કેનેડા ગયો 4-5 દિવસ પહેલા, એટલે એના ઘરે આપણે મિત્રનો છોકરો એટલે એવું લાગે એટલે જવું પડે। ગયા મળવા માટે, બેઠા કેનેડા જવાનું કે હા, अलग बैठो तो बारनी साइड बोले शू करवा जवाना एनो को जोवा बद्धा जाए એટલે એને જોવું, બધા IELTS કરે એટલે એને કરવું, બધા સરકારી નોકરી કરે એટલે એને કરવી, બધા ગાંધીનગર ક્લાસ કરવા જાય ને એટલે અહીંયા જઈને મારે પપ્પા ગાંધીનગર જવું। હું કરવા ભાઈ કે મારા 4 મિત્રો ગયા એટલે તારે જવાનું। कॉपीकैट्स, नवो कશું જ નહીં કરવું સાહેબ કોઈને। नया किसी को कुछ करना ही नहीं, कॉपी। इसने ये किया तो मैं इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग, डॉक्टर तो डॉक्टर, वकील तो वकील। कॉपीकैट्स, नो पेशेंस। धंधा में भी तभी नजर करो, बिजनेस में भी ऐसा ही है। अगर आपके समाज में किसी ने ट्रांसपोर्टेशन का धंधा किया और वो सक्सेस हुआ तो एक ही साल में आपके समाज में और 4 लोग ट्रांसपोर्ट का धंधा करेंगे। एग्री करते हो? हाँ, आउ थाय नवो कશું જ નહીં કરવા। एक जन ने कपड़ा दुकान शोरूम खोले એટલે બીજી 10 खुली गई। એ જ ગામના બીજા 4 જણા ખોલી નાખે। એગ્રી કરો છો? कॉपीकैट्स, नो पेशन। एक भाई ચાની બ્રાન્ડ લઈને આવ્યો MBA ચાય વાળા, એટલે પછી કેટલા આપા ચાય વાળા, ઢેકના ચાય વાળા, પૂંછવા ચાય વાળા ને 1000 ચાય વાળા આવી ગયા। एक भाई वड़ा पावनी ब्रांड लेने वाले 1000 वड़ा पावनी ब्रांड आई थी। कॉपीकैट्स, नो पैशन। अगर हम जो धंधा कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो कॉपीकैट्स वाला है तो छोड़ो उसको, समझ लो उसमें कुछ नहीं। फंक्शनल स्किल एंड बिजनेस, जितने भी धंधे कर रहे हैं, जितने भी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, वो सारी कौन सी है? फंक्शनल। फंक्शनल से क्या मतलब है मेरा? कुछ लोगों को क्लियर नहीं होता तो क्लियर। फंक्शनल मतलब कि जो काम में, जो बिजनेस में अगर आपको कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो फंक्शनल है। आपको कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो फंक्शनल है, वो मैकेनिकल है। वो आपको कोई भी आपको रिप्लेस कर सकता है उसमें। समझ लो कि आपने इधर कपड़े का शोरूम खोल दिया, बाजू में 100% कोई खोलेगा। एग्री करते हो? आपने जूतों की दुकान खोल दी, बाजू में कोई खोलेगा। आपने चाय की टपरी खोल दी, बाजू में कोई खोलेगा। आपके फॉरेन का कंसल्टेंट का काम चालू कर दिया तो बाजू में कोई कंसल्टेंट आ जाएगा। एग्री करते हो? फंक्शनल। जो स्किल है वो भी फंक्शनल है। मैकेनिकल जो वाइटल होती है ना, उसमें क्या होता है? इमिटेशन होता है, वो आपका खुद का होता है, उसमें आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाता। ये हमें समझना है। हमारे बिजनेस को लोग बिजनेस नहीं समझते, बराबर ना? देखो ये सारे कैरियर्स, ऐसा कहा जाता है, ये सारे कैरियर्स हम मानते हैं
लेकिन रिवॉल्यूशन है दोस्तों, रिवॉल्यूशन आ रहा है, इधर कुछ नहीं, देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। आमाथी कोई हुआ तो खोटू ना लगाड़ता, एडवांस में सॉरी, देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। अहिया भयंकर हरीफाई છે માર્કેટ ની। 5% લોકો સફળ છે, એગ્રી કરું છું, બાકી 90% લોકો શું કરી રહ્યા છે? સ્ટ્રગલ। આ બન્યા પછી 90% लोग मार्केट में रिवॉल्यूशन है। पैसा कौन कमा रहा है? यू नो ब्लॉगर, यू नो सोशल मीडिया मार्केटर, यू नो हाई टिकट क्लोजर। हाँ बता जाओ છો તમે? ये सारे ऐसे बिजनेस है जिसमें लोग अभी करोड़ों रुपया कमा रहे हैं दोस्तों। પણ આપણે સમા પડાય છે કોપી કેટ્સ, આર્ટ સાયન્સ કોમર્સ। શું રાખ્યું તમારા છોકરાએ? ભાઈ રહેવા દે, તમે જે રાખ્યું એ તારે શું કરવું છે? અને પછી કેટેગરી ફિક્સ કરેલી, આર્ટ્સ રાખે ઠોટ અને સાયન્સ રાખે હોશિયાર। અને હોશિયાર 12માની અંદર 70% ફેલ, 45% લાઈન ઉભો રહે, પછી ખબર પડે કેટલો હોશિયાર હતો। એગ્રી કરો છો? એનું તો બિચારાને પૂછવાનું જ નહીં। મામાના છોકરાએ એન્જિનિયરિંગ કર્યું, સાયન્સમાં રહીને સારી જોબ મળેલી, બેટા તારા સાયન્સ જ રાખવાનું, તારા આ જ બનવાનું। કેમ ભાઈ? એને તો પૂછો। કોપી કેટ્સ, ચેન્જિંગ આવ્યું છે મિત્રો, માર્કેટ રિવોલ્યુશન છે। ફંક્શનલ બિઝનેસ, આ બધા બિઝનેસ તમે તમારા રિલેટિવ્સમાં કોઈ નવો ધંધો ચાલુ કરતો ને તમે જોજો આવા જ ધંધા હશે, આમાંથી કોઈ કેટેગરીમાં આવતા હશે। આ બધા જ કેવા છે? ફંક્શનલ। रेस्टोरेंट, लॉजिस्टिक, रिटेल, ट्रैवल, होटल्स, मैन्युफैक्चर यूनिट, शोरूम्स, सारे फंक्शनल है, उसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, इसलिए लोग कर रहे हैं। जहां दिमाग लगाने की बात आती है वहां તમે કેંગર બતાવો એટલે પાછા પડે કે યાર આવું ના થાય। કેમ બેટા? અને એનું જેમ તમે કોઈ કપડાનો શોરૂમ બનાવી છે આપણે, 50 લાખનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે તો 10 લાખ લગાય તો તૈયાર થઈ જાય। કેમ કે ફંક્શનલ છે, પછી ભલે એમાં ના કમાતા। હા, રેસ્ટોરન્ટ, આપણા જે બિઝનેસ પાર્ટનર છે સંજયભાઈ પટેલ, બરાબર, એમની હોટલમાં કેટલા લોકો અહીંયા બેઠેલા આવેલા છે? રેસ્ટોરન્ટ છે, હોટેલ છે। હા, 18 કરોડ રૂપિયાનો પ્રોજેક્ટ, 18 કરોડના પ્રોજેક્ટ। મહિનો પૂરો થાય ને એ સંજયભાઈ કે હું બીક લાગે ખબર, પેલો પૈસા ના માગે તો સારું, એનું થઈ ગયું હોય ને આટલા મહિનામાં, પેલાનો ફોન ના આવજો મેનેજરનો, સાહેબ આટલા ઘટ્યા। મહિનો પૂરો થવાનો કે એવી બીક લાગે, તમને લાગે બારથી મોટું। बिजनेस ना अंदर उतरो ना, मैंने कितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस वालों को देखा, उसके अंदर आप घुसोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि रियलिटी क्या है। बराबर? फ्रेंचाइजी आजकल चलो, लाइक टी, वड़ा पाव, छाछ वाले, खमण वाले, ढोकला वाले। हाँ आउ चलो કેટલા બધા નામમાં લખી શકું, બસ બધાને આવું જ કરવું, નવું કશું કરવું નહીં। એટા વાઇટલ આ ફંક્શનલ સ્કિલ, આ સ્કિલમાં તમને બધા લોકો શું કરી શકે? આમાં કેટલી લખી શકું છું? हाँ, इसमें मैं बहुत सारे लिख सकता हूँ, लेकिन इसमें लोग आपको रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें आपका खुद का कुछ नहीं, बराबर ना? लेकिन हमें कौन सी स्किल सीखनी है दोस्तों? वाइटल। देयर इज नो कॉम्पिटिशन, ये वाइटल स्किल है। देखो, सेल्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट, 1-to-1 क्लोजिंग, ब्रांडिंग, कोचिंग, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, स्टोरी टेलिंग, प्रोग्राम बिल्डिंग, फनल बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म क्लोजिंग, ये सारी ऐसी स्किलें हैं जो कौन सी है? वाइटल है। इसमें से आप किसी को बोले कि एक स्किल डेवलप कर दो, वो करने के लिए तैयार नहीं है लोग। फनल का मतलब ये होता है कि कुछ फनल्स जस्ट लाइक ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जो 1 by 1 चलते हैं, जिसको फनल बोलते हैं। नहीं, जॉक नहीं है। हाँ, 1-to-1 क्लोजिंग मतलब हम ऐसी मास्टरी, हमारे किसी के सामने बैठेंगे, हम कोई चीज, कोई कंसेप्ट रहेगा तो उसका क्लोजिंग करके उठेंगे, तो 1-to-1 क्लोजिंग है। प्लेटफॉर्म क्लोजिंग क्या है कि हमारे सामने ऑडियंस बैठा होगा कितना भी, और हम कुछ उसको कोई ऐसा कंसेप्ट रिलीज करेंगे, उसमें से मैक्सिमम हम क्लोजिंग ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट कोई भी हो, समझ लो स्नेह देसाई सर है, ट्रेनर है बहुत बड़े, तो क्या करते हैं? प्लेटफॉर्म क्लोजिंग करते हैं। एक जूम लिंक लगाते हैं, बराबर, 1 घंटे का फ्री सेमिनार लेते हैं, क्या 2 घंटों का, जिसमें 2000-3000 लोग बैठते हैं, जिसमें 99 रुपीज ओनली, बराबर। तो प्लेटफॉर्म पे कितने लोग बैठे? 2000।
वो 2000 लोगों को 2 घंटा ऐसा कुछ बताते हैं जिसमें से वो लोगों को वर्कशॉप में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी फी 50,000 रुपया होती है, समझ लो। तो उसमें से 2000 में से कम 100 लोगों का वो क्लोजिंग कर लेते हैं। तो कितने का धंधा कर लिया फटा करके? 50 लाख का। इसको प्लेटफॉर्म क्लोजिंग बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी स्किल है। मैंने बताया कि भी आप इधर आए तो आपको वैल्यू मिलेगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब समझना कि कोई बंदा है जिसको एक इंजीनियरिंग, मैं खाली एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन एनी कोई भी स्टडी कर रहा है तो 4 साल वो करेगा, उसके बाद उसकी इनकम चालू होगी। एग्री करते हो? वो चाहे सीए करता हो, इंजीनियरिंग करता हो, कोई भी करता हो, लेकिन ऐसा कोई बुक में लिखा है कि वो इंजीनियरिंग होने के बाद ही पैसा कमाएगा? ड्राइंग इंजीनियरिंग वो पैसा नहीं कमा सकता, उसको नहीं कमाने चाहिए, ऐसा कहां लिखा है कोई बुक में? हाँ, कहीं लिखा है? मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि आप मत पढ़ो, आपके लड़के को मत पढ़ाओ, उसको कोई डिग्री मत दिलाओ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। इधर से मेरा मैसेज ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक डिग्री है, वहां से पैसा आएगा ऐसा मत मानो। और पैसा कमाने के लिए इतनी वेट करनी है ऐसा भी कहीं नहीं है। लेकिन मान लो कि अभी इसमें से कोई भी एक स्किल आप चूज करो, समझ लो, और उसमें मास्टरी ले लो, और वो मास्टर बनने में आपको कितना टाइम लगेगा? ओनली 6 मंथ। कितना समय लगेगा? 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 6 महीने के बाद आपकी क्या चालू हो जाएगी? इनकम। मतलब कि आज मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन हुआ, मैं समझ लो, और मैंने इसमें से एक स्किल ज्वाइन कर ली, 6 महीने काम किया, मास्टर बन गया। तो जब तक इंजीनियरिंग कंप्लीट होगी ना, लोग जब जॉब के लिए तड़पते होंगे तब मैं 2-5 लाख रुपया कमाता हूं। समझ रहे? ये चीज है। तो इसमें से हमें जो बिजनेस के साथ हम जुड़े हैं, मतलब कि ये स्किल सीख के आप खुद का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा ब्रिजेश भाई? पहले एक आइडिया लाना पड़ेगा, आइडिया लाने के बाद एक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी ब्रांड बनानी पड़ेगी, देन आफ्टर उसको आप मोनेटाइज कर सकते हो, समझ लो। लेकिन हमारी जो पास है, ऑलरेडी कल आपको बताया कि हमारी खुद की बहुत बड़ी ब्रांड है, हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है, इनोवेशन है, सब कुछ है। हमें क्या करना है? खाली उसके साथ प्लग होना है। लेकिन यह बिजनेस करने के लिए इसमें से कौन से ऐसी स्किल है जो आपके अंदर होनी चाहिए, जो आप में अभी नहीं है? समझ लो। इसका एक फोटो ग्रुप में आ जाएगा, बराबर? इसके एक फोटो आ जाएगा। आज के दिन में आपको सोचना है, इसमें से 4 स्किल आपको डिसाइड करनी। कितनी? 4। कि आने वाले 1 साल के अंदर ये 4 स्किल आप सीख जाओगे। एनी हाउ कैसे सीखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा आज। उसकी सोर्सेज क्या है सीखने के। और ये 4 स्किल आपने सीख ली 1 साल में, तो आप इस बिजनेस में मास्टर बन जाओगे। आपको ये धंधा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। समझ में आ रही है चीज? ये करना है हमें, ये धंधे में सक्सेस होने के लिए हमें ये करना है। हम ये नहीं करते, दूसरा सब कुछ करना है, लेकिन कुछ सीखना नहीं है हमें, तो हम सक्सेस नहीं होंगे, बराबर ना? मैं गारंटेड, आफ्टर टुडे यू विल नॉट लुक एट लाइफ एट द सेम वे। आज के बाद आपकी जो लाइफ को देखने का आपका जो नजरिया है ना, वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा 100%, बराबर? तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वर्ल्ड हैज चेंज, दुनिया बदल रही है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन पास्ट। दुनिया बदल रही है दोस्तों, हम पास्ट में जी रहे। जोरदार बताए, यहां नहीं गया फिर ना पीपल आर स्टिल लिविंग इन पास्ट, बराबर? तो ये पास्ट में से हमें बाहर आना है। हमें कौन सा बिजनेस करना है? फंक्शनल बिजनेस नहीं करना है, हमें कैसे बिजनेस करने हैं? वाइटल। वाइटल बिजनेस किसको बोलते हैं? फंक्शनल और वाइटल में क्या डिफरेंट है मैं आपको समझाना चाहता हूं, बराबर? आप ये बिजनेस लेके जाते हो मार्केट में, तो ज्यादातर लोग आपको ऐसी नजर से देखते हैं कि आपके पास आप जो लेके गए ना वो बिजनेस है ही नहीं, ऐसे देखते हैं। एग्री करते हो? ऐसा कितने लोगों को फील होता है? हम जब बैग लेके जाते हैं, आपका मेडिकल है, समझ लो सर, और आप मार्केट में जाते हो जब ये बिजनेस लेके, तो लोगों को ऐसा लगता है कि इतना अच्छा मेडिकल का धंधा है, और आज क्या रवाड़ी चढ़िया भाई। हाँ ऐसा लगता है? हाँ ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है। एग्री करते हो? सबको यही प्रॉब्लम है ना? આનાથી મોટો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં છે, કોઈ નહીં। હા, ઉજાસભાઈની સારી ઓફિસે પ્રેક્ટિસ સારી ચાલે, હું બેગ લઈને ફરવાનું ચાલુ કરી ભાઈ, શું કરવા? क्योंकि लोग इसको बिजनेस नहीं मानते हैं आपके बिजनेस को। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस कैसा है?
वाइटल है, वो वाइटल लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता। और फंक्शनल और वाइटल में क्या डिफरेंट है वो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताना चाहता हूं, एकदम सिंपल लॉजिक से समझाना। बराबर, इधर नीचे एक लाइन लिखी है मैंने, जितने बिजनेस लोग करते हैं, ध्यान से सुनना मुझे पहले, जितने लोग जो बिजनेस करते हैं ना फंक्शनल बिजनेस, उसमें क्या होता है कि वो बंदा अपना खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बिजनेस करता है कि ये मेरा बिजनेस अगर चल जाए, अगर ये मेरा काम हो जाए तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एग्री करते हो? फंक्शनल बिजनेस में ऐसा होता है। वाइटल बिजनेस में क्या होता है, मनी इज बाय प्रोडक्ट व्हेन द वैल्यू क्रिएट इन द मार्केट प्लेस। मतलब आप लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करो तो पैसा आपके अकाउंट में बाय प्रोडक्ट आएगा। दैट्स कॉल्ड वाइटल। लेकिन ये जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन डिफरेंट क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। वो बिजनेस मानता है कि नहीं मानता है, समझ लो, बहुत ध्यान से समझना। ये जो लाइन है वो पंच लाइन है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आप बैग लेके जब मार्केट में निकलते हो तो लोग आपके धंधे को धंधा समझते हैं कि नहीं समझते, वो बात छोड़ दो। मैं ये पूछता हूं कि आप इसको धंधा समझते हो? इसका जवाब अगर आपके पास हाँ है तो आपको ये धंधे में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आपको ये डाउट है कि ये धंधा है कि नहीं, आपको ये डाउट है कि ये धंधा है कि नहीं, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, फलाना, आपके अंदर एक हजार सोच आ रही है ना, तो आपको कोई सफल नहीं कर पाएगा। तो पहले इसको आप खुद धंधा समझ लो, दुनिया धीरे धीरे उसको समझेगी। एक प्रैक्टिकल बताऊं कैसे, जानना चाहते हो? ओके, मैंने 2019 में धंधा चालू किया। बहुत ध्यान से सुनना, कोई नहीं मोबाइल रिंग ना वागे जो वो बहुत डिस्टर्ब थी गई, कोई ना वेम्मा नहीं રહેવાનું को मारे नहीं वाला। हाँ, तो 2019 में मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। ध्यान से समझना, मैंने ये धंधा स्टार्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया वो टोटल था 4 लाख रुपए। मैंने एक ऑफिस ओपन किया था महसाना मानव आश्रम विस्तार जो है वो रोड पे, विसनगर रोड बोलते हैं, वहां एक मार्केट था, जो मार्केट भी 2019 में ही ओपन हुआ था। मतलब वो मार्केट में जितने भी बिजनेस चालू हुए वो सारे बिजनेस 2019 में ही चालू हुए। बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न करना कि वाइटल और फंक्शनल में क्या है। मैं कोई स्टोरी नहीं बोल रहा हूं, आपको ये डिफरेंट प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूं। तो वहां मेरे अलावा जो जो बिजनेस चालू हुए थे उसकी बात करूं तो एक सिरामिक का शोरूम खुला था 8-10 दुकान में, इन्वेस्टमेंट कम से कम उसका होगा 4 CR। एक साइकिल का स्टोर ओपन हुआ, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का शॉप ओपन हुआ, शोरूम टाइप्स 2-3 दुकान में, एक टीवी फ्रीज गरगंटी जो होती है उसका एक शोरूम ओपन हुआ। बराबर, इन शॉर्ट जितने भी बिजनेस ओपन हुए उसमें जो इन्वेस्टमेंट था वो मोर देन 30 लाख to 4 करोड़ सबका इन्वेस्टमेंट कम से कम। और मैंने जो बिजनेस चालू किया वो कितने में चालू किया? 4 लाख। अभी ध्यान से समझना, सबने जब बिजनेस चालू किया तो बड़े बड़े ओपनिंग रखे, मंडप लगाए, लोग आए, गाड़ियां लेके खाया, सेव खमनी, आइसक्रीम, बहुत बड़ा बड़ा ओपनिंग किया। करते हैं ना ऑब्वियसली, लोग ऐसे ही करते हैं। हमने ओपनिंग किया तो सहयोग ना पेड़ा, एक पैकेट, और दुकान, सब दुकान पे हमारे अंकल थे मनु काका, वो गए कि लो हमने ओपन किया, खा लो। जितनी भी दुकान थी उनको एक एक खिला दिया, बात खत्म, हमारा ओपनिंग हो गया। अभी क्या सीन है देखो कि जो लोग वो मार्केट में आते, नया मार्केट था, लोग विजिट में आते थे, ऐसे खड़े रहते थे, ये चालू हुआ, ये चालू हुआ, तो सबके बिजनेस के बारे में सोचते क्या इसका साइकिल का स्टोर बहुत बढ़िया, सिरामिक का बहुत बढ़िया शोरूम बनाए। ऐसे करते करते जब मेरे शॉप पे नजर आती थी कि ये क्या है, भरत लो पानी, मतलब कसूर नहीं है, तुच्छ। समझ में आ रही है मेरी बात? बराबर, आपके साथ भी अभी ऐसा ही कुछ हो रहा है, आपने चालू किया है, रिलेटेड करना आप अपने आप को, समझना। वो मेरे धंधे को धंधा ही नहीं समझते। कुछ लोग तो सलाह देते थे कि भरत भैया पानी क्या है तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, आपको तो ग्राउंड फ्लोर पे चालू करना चाहिए, लोग पानी लेके उतरेंगे कैसे नीचे।
हाँ, ये नहीं सोचा था हमने, बराबर। लेकिन मैं मेरे बिजनेस को बिजनेस मानता था। मैंने आपको इससे पहले बताया कि आप बिजनेस मानते हो कि नहीं मानते हो, ये सबसे बड़ी चीज है। आपके दिमाग से मुझे अच्छा लगाने के लिए मत बोलो। आप आज रात को सोते सोते सोचो, फील करो इधर बैठे बैठे कि रियल में आप इसको बिजनेस मान रहे हो। अपने आप को पूछो और जवाब भी अपने आप को दो। मुझे नहीं चाहिए जवाब, मुझे चाहिए ही नहीं। आप मानते हो कि नहीं? लेकिन मैं मानता था कि ये मेरा क्या है, बिजनेस है। लेकिन इन लोगों को मेरे बिजनेस को समझने में टाइम लगेगा। आज 4 साल के बाद क्या सीन है? वही दुकान है मेरी छोटी सी, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। जो लोग मेरी ऑफिस में आए विजिट किए उन सबको मालूम है कुछ ज्यादा देखने लायक ऑफिस नहीं है, बराबर। ऐसा कोई इमिटेशन मत करना कि इतना अच्छा होगा सर का ऑफिस, ऐसा कुछ नहीं। छोटा सा ऑफिस है, एक एसी लगा है, 2 4 5 चेयर लगी है, एक डेमो पीस के लिए वो डिवाइस लगा है, बस ऐसा एकदम सिंपल। लेकिन 4 साल के बाद सीन क्या है, वाइटल और फंक्शनल में क्या बिजनेस में फर्क है ना, वो मैं समझाना चाहता हूं। 4 साल के अंदर मेरे धंधे में मैंने 100 CR का टर्नओवर किया, 100 CR। आज मेरा महीने का टर्नओवर कम से कम 5 से लेके 7 करोड़ का है, 5 to 7 CR। लास्ट मंथ मेरी बात करूं तो 230 डिवाइस हुए मेरी टीम के, 230 डिवाइस हुए। आप पकड़ लो हमारी प्राइस क्या है, कम से कम 2.5 लाख पकड़ के चलो। 2.5 लाख इंटू 230 कितने रुपया होता है, पकड़ लो। ये मेरा 1 महीने का टर्नओवर है। वो मेरे मार्केट में जो बिजनेस चलते हैं जो कम से कम 30 लाख से चालू हुए हैं और कहां तक के हैं, 4 करोड़ के। बहुत ध्यान से समझना, वो सबका अगर टोटल किया जाए टर्नओवर 1 साल का, कितने का, 1 साल का, मैं गारंटी देता हूं कि वो मेरे महीने के टर्नओवर से ज्यादा नहीं होगा। इससे ज्यादा मेरा, उनका 1 साल का जो टर्नओवर है उससे ज्यादा मेरा 1 महीने का टर्नओवर है। दैट्स कॉल्ड वाइटल बिजनेस। शुरुआत में हम लोगों को पानी देते थे सैंपल के लिए कि पानी पियो खुश रहो। अभी देना बंद किया है। कुछ 4-5 लोग आते हैं तो वो आजू बाजू वाले पूछते हैं તમારો ધંધો હમણાં પાણીનો બહુ ઓછો ચાલે નહીં, બહુ ઓછો, બહુ મંદી ભાઈ, લોકો સમજતા જ નહીં પાણી। એને બેટાને ખબર નહીં શું ચાલે। હા, તમે શું કેવી રીતે આ ધંધાનો જોવો છો, બહુ મહત્વનું છે આ વાઇટલ બિઝનેસ। મેં લોકોના લાઈફમાં વેલ્યુ ક્રિએટ કરવાની ચાલુ કરી। એમને ખબર નથી હું શું કરતો હતો, એ વેચતા था, ये प्रोडक्ट सेल करता था, वो लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे थे और मैं क्या कर रहा था, लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर रहा था। तो इतना बड़ा बिजनेस हुआ। आप किसी की लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर रहे हो इस बिजनेस के माध्यम से, उसको बेच नहीं रहे हो, बराबर ना। इन लोगों ने क्या किया, लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व किया, लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट की। पैसा उनके अकाउंट में कैसे आ रहा है, बाय प्रोडक्ट। देखो इसने क्या किया, आपका जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन। इसने क्या किया, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की, बराबर ना। इसने क्या किया, हाँ सोचो ये सारी चीजें। आपके जो प्रॉब्लम्स थे उसका सॉल्यूशन दिया, पैसा उनके पास बाय प्रोडक्ट जा रहा है। एग्री करते हो, एग्री करते हो। अमेजोन का मालिक जो है वो उसको एक बुक खरीदनी थी। वो बुक लेने के लिए वो 5 घंटा मार्केट में घूमा, तभी जाके उसको एक बुक मिली। तो उसने सोचा कि ऐसे कितने लोग होंगे दुनिया में, हाँ, कि जिनको ऐसी कोई यूनिक चीज अगर चाहिए तो उनको कितना घूमना पड़ता हो। तो सबसे पहले उसने क्या किया, जितनी भी अच्छी बेस्ट सेलर बुक थी ना उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला दी और ऑनलाइन सबसे पहले उसने क्या बेचना चालू किया, बुक्स बेचना चालू किया। पहले ये सब नहीं मिलता था अमेजोन पे, ओनली बुक्स मिलती थी, हाँ बराबर ना। ध्यान आफ्टर उसने सारी प्रोडक्ट ऐड की, लेकिन उसने लोगों का प्रॉब्लम देखा, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते हैं, उनका मैं क्या करूं, सॉल्यूशन लाऊं। हाँ, ओला कैसे चालू हुआ,
एक जगह पे दो दोस्त रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। वहां कोई ऐसी पार्टी चल रही थी जैसे हमारी चल रही। खाना खाने के बाद वो बाहर निकले तो बाहर देखा तो बारिश जोरदार आ रही थी। तो वो दोनों आराम से रिसेप्शन में बैठ के बातें कर रहे थे कि जैसे बारिश खत्म होगी जाएंगे, लेकिन बहुत सारी भीड़ बात खड़ी थी। तो उसने पूछा वो रिसेप्शन के इतने लोग क्यों खड़े, मतलब बारिश आ रही है, अभी किसी को टैक्सी नहीं मिल रही, इसलिए इतनी सारी भीड़ है। फिर जब बारिश कंप्लीट हुई, लोग धीरे धीरे निकले, उसने देखा कि थोड़ा उधर से 1 किलोमीटर आगे गया, उधर टैक्सी स्टैंड था, तो वहां बहुत सारी टैक्सियां खड़ी थी। लेकिन वो टैक्सी वालों को मालूम नहीं था कि होटल में 200 लोग वेट करके बैठे टैक्सी का, समझना ध्यान से। और इन लोगों को मालूम नहीं था कि वहां टैक्सी खड़ी है। वो दो दोस्तों ने सोचा कि हम ऐसा कुछ करें कि ये दोनों का कनेक्शन कर दे तो कितना पैसा कमा सकते। लोगों के प्रॉब्लम के बारे में सोचा और उसका सॉल्यूशन लिया। खुद की एक गाड़ी नहीं है दोस्तों। अब देखो दुनिया में कितना बड़ा नाम है, बराबर। लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट की, लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो जाके वो पैसा कमा रहे हैं। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, बराबर, कि अगर आपको करोड़पति बनना है, मैंने बोला 95% वाली बातें होने वाली है। वो करोड़पति को गणन झोंकला, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि कोई काम आप 4 या 5 या 6 साल से कर रहे हो और आपकी 1 साल की इनकम अगर 1 करोड़ नहीं है तो आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। ये 2023 है, करोड़पति बनने के लिए 20 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर 20 साल के बाद आप करोड़पति बनने वाले हो तो आपकी लाइफ में आप कुछ नहीं किया, ऐसा समझ लो। 2 साल में आप करोड़पति बन सकते हो, बराबर। लेकिन करोड़पति बनने के लिए करना क्या पड़ेगा, लोग मुझे पूछते हैं, बराबर। तो सिंपल है, सॉल्व 1 करोड़ प्रॉब्लम वर्थ RS1। आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करो कि जिसकी वैल्यू 1 रुपया है, ऐसे 1 करोड़ लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप क्या बन जाओगे, करोड़पति। मैं महसाना से इधर आ रहा था तो मुझे बीच में ऐसा लगा कि मुझे चाय पीनी है, तो बीच में बंदा कोई चाय उबाल रहा था, बहुत ध्यान से समझना। तो मुझे चाय पीना वो मेरा प्रॉब्लम था, उसने मुझे क्या दिया, उसका सॉल्यूशन, बराबर ना। तो उसको उसमें से वैल्यू मिला 1 रुपये का, क्योंकि उसकी वर्थ बहुत छोटी है। मेरे जैसे 1 करोड़ लोग जब उसके यहाँ चाय पीने खड़े हो जाएंगे, उस दिन वो क्या बन जाएगा, करोड़पति। लेकिन कितने दिन वो बनेगा, आई डोंट नो। मना का बनना था क्या 1 करोड़ लोगों को दिया चाय पी दे सकते। लेकिन इससे भी अच्छा सॉल्यूशन है कि अगर सॉल्व 1 प्रॉब्लम वर्थ RS1 करो, आप किसी का ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करो कि जिसकी वैल्यू कितना रुपया है, 1 करोड़, तो आप क्या बन जाओगे, करोड़पति। सिंपल। मेरे पास कोई आया, मेरा प्रॉब्लम था इनकम का, कैरियर का, स्ट्रगल कर रहा था, करोड़ों का प्रॉब्लम था। कोई आया मेरे घर पे बैग लेके, लाल पीला नीला किया, जो भी समझाना था वो समझाया, लेकिन मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया उसने, जिसकी वर्थ करोड़ थी, करोड़ से भी ज्यादा थी, समझ लो। तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का उसको कितना मिला, हाँ अभी तक तो 2.5 करोड़। मैंने जो धंधा किया इसमें से अभी तक तो कितना ले लिया उसने, 2.5 करोड़। सोचो आप, क्योंकि मेरा करोड़ों का प्रॉब्लम सॉल्व किया तो उसको कितने मिले, करोड़ों मिले। सिंपल। बिगर द प्रॉब्लम बिगर द मनी। यू कैन सॉल्व बिग प्रॉब्लम, यू कैन अर्न बिग मनी। ઘણા લોકો કે લોકોને સાહેબ મોંઘું પડે છે, મોંઘું છે ને એટલે જ પૈસા છે। 5,000 રૂપિયાની વસ્તુ વેચી કોઈ કરોડપતિ ના બને, સમજાય છે। बिगर द प्रॉब्लम बिगर द मनी। तो आज ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है, આ બધું વેચીને नहीं बनवाना करोड़, ना तो समोसा चाय छाछ वड़ा पाव। इससे मेरा मतलब है ऐसे बिजनेस, ये लॉजिक खाली आपको लगाना है, समझना है, बराबर। तो आज ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो हम सब मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, हाँ इंडिया के अंदर बिगेस्ट प्रॉब्लम कौन से है? तो 3 प्रॉब्लम है दोस्तों, देखो, हेल्थ, वेल्थ एंड सिक्योरिटी। हम जो कंसेप्ट के साथ जुड़े हैं, तो हम करोड़पति क्यों बनने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़े 3 प्रॉब्लम, और ये 3 प्रॉब्लम का हमारा कंसेप्ट क्या दे रहे हैं, सब सॉल्यूशन दे रहे हैं। इसलिए हम करोड़पति बनने वाला है, इसलिए अब आप करोड़पति बनोगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम बड़े हैं, बराबर ना, बड़े प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देख सकते हो उधर, हाँ हेल्थी रहने के लिए 3 चाहिए, नहीं है,
आपने देखा इसमें टाइम नहीं निकालता हूं, हेल्थ का प्रॉब्लम है ना बाबू भाई, साहिब बनाते मरी गया, छोकरो भणतो मरी गयो, डॉक्टर ऑपरेशन करता આપણે જાણીએ છીએ ખાલી જો તો દસ્તાવેજમાં સહી કરવા ગયો मैं मरी गयो, हाँ एग्री। એટલે हेल्थ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सेकंड कौन सा प्रॉब्लम है? वेल्थ। हाँ, मोर देन 25 करोड़ फैमिली अक्रॉस इंडिया लिव इन मिडिल क्लास, ये भी प्रॉब्लम है। इन सबको कहां जाना है? रिच क्लास में जाना है। इनको सॉल्यूशन दो जाके, ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा कौन सा प्रॉब्लम है? अनएम्प्लॉयमेंट। 3300 तलाटी लेवानो 10 लाख जना परीक्षा, हाँ है कि नहीं प्रॉब्लम? इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सिंपल, जाके दो, हजारों युवा आपकी राह देख रहे हैं। सिक्योरिटी, ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। घर में एक मेन आदमी जो कमाने वाला है, अगर इसको कुछ हो गया, समझ लो, फील करो थोड़ी देर के लिए, तो उसकी फैमिली की क्या प्रॉब्लम, क्या हालत होती है। 12 दिन के बाद कोई पूछने वाला नहीं होता है। 12 दिन तक तो पूछते हैं, कोई काम हुआ तो कहजो। पशु कोई पूछवा नहीं होતું। બધા પરિવારની હાલત આવી હોય છે। જ્યારે ઘરનો કમાવાવાળો એક માણસ જતો રહે, તમે તમારી જાતને પૂછો, આપણે બધા કઈ અમરપટ્ટો લઈને નહીં આવ્યા, તો આપણને કઈ થઈ જાય, તો આપણે એવો કોઈ પ્લાન કર્યું, તો આપણી ફેમિલી હાલ જે લાઈફ જીવી છે ને, એ જ લાઈફસ્ટાઈલથી જીવશે, માનો ના હોય। એવો જો તમે કોઈ પ્લાન નથી કર્યો, તો મિત્રો ઓપોર્ચ્યુનિટી તમારા માટે છે। આળસ ના રાખો। સોલ્યુશન સિક્યુરિટી, બરાબર। આ બધું જ કરવા માટે શું કરવું પડશે? સ્કિલ શીખવી પડશે। હાઉ ટુ એક્વાયર સ્કિલ, हाउ टू एक्वायर। तो डोंट बी रैंडम लर्नर, बी अ फोकस लर्नर। पहले तो आपको स्किल सीखना चाहते हो तो आपको रैंडम लर्नर नहीं बनना है। आपको कौन सा लर्नर बनना है? फोकस। मतलब जो स्किल सीखना चाहते हैं उसके ऊपर ही फोकस करो। रैंडम लर्नर कैसे होते हैं? लर्निंग तो इधर बैठने वाले बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं कि ऐसे यूट्यूब खोला और एक वीडियो आया स्नेह सर का देख लिया, एक वीडियो आया विवेक बिंद्रा का देख लिया, एक वीडियो आया वो उज्ज्वला चमन, क्या नाम उसका, हर्षवर्धन, देख लिया, बराबर। ऐसे बहुत सारे वीडियोज एक एक देख, मतलब एक कैसा लर्निंग है जगदीश में? रैंडम, जो आया देखा, मतलब मोटिवेशनल देखना ना सर। लेकिन ऐसे नहीं, आपको कौन सी स्किल डेवलप करनी है? आपको सेल्स में मास्टर बनना है, आपको 1-to-1 क्लोजिंग में मास्टर बनना है, आपको प्लेटफॉर्म क्लोजिंग में मास्टर बनना है, आपको पर्सनालिटी पे कौन सी स्किल आपको एकत्र करनी है, तो वो स्किल वाले जितने भी बनते हैं उसको ही सुनो कि जहां से आपका वो काम होता है, उसके ऊपर फोकस करो। ऐसे ही बुक पढ़ो जो आपको सेल्स सिखाती है। देखो क्या दुनिया में सबसे अच्छी सेल्स की बुक कौन सी है, वो लाओ, वो पढ़ो, उसको सुनो। जो दुनिया में सबसे अच्छा सेल्स का ट्रेनर है उसको ही सुनो, दूसरे को क्यों सुन रहे हो? मतलब फोकस कर लो आप, जो सीखना है उसके ऊपर, और वही सीख जाओ, उसमें ही मास्टर बन जाओ। दूसरा मत करो, इधर उधर मत देखो। मतलब फोकस लर्नर बन जाओ, तो आप 6 महीने के अंदर वो स्किल में क्या बन जाओगे? मास्टर बन जाओ। ऐसे सोर्स निकालो, ऐसे सोर्सेस निकालो गूगल पे जाके कि वो सोर्स का ही आप पढ़ो जो आप, जिसमें आप मास्टर बनना चाहते। आपको 10 मिनट मिल गई तो 10 मिनट पढ़ो। मेरे घर में आप आओगे, जो मेरी ऑफिस में मेरे टेबल पे एक बुक रहती है जो मैं पढ़ता हूँ कंटिन्यू, मतलब मुझे 15 मिनट मिल गई तो मैं 15 मिनट के लिए वही पढ़ूंगा और कुछ नहीं करूंगा। मेरे घर पे आओगे तो मेरे घर पे भी ऐसे ही बुक पड़ी होगी जो मेरे तुरंत हाथ में आ जाए। मतलब मिसेज चाय बना रही है, मैंने ब्रश कर लिया, अभी नाश्ता करना है, 10 मिनट की ब्रेक है, तो 10 मिनट में मैं क्या करूंगा? वो बुक्स ऐसी जगह भी पड़ी होगी, सीधा मैं वही पढ़ना चालू कर दूंगा। समझ लो, प्रोडक्टिव यूज ऑफ टाइम आपको वो करना है। इनपुट इक्वल टू आउटपुट। आप इधर 10 दिन बैठो, 10 दिन में बोलूंगा, 10 दिन में कोई टॉपिक रिपीट नहीं करूंगा। 10 दिन तक एक चीज रिपीट नहीं होगी। क्यों? इनपुट मैं दे रहा हूं तो मैं आउटपुट निकाल सकता हूं। आप अंदर क्या डाल रहे हो वही बाहर आएगा। सिंपल है। પછી જો આપણે જેઠાલાલ જોતા હોય તો એ જ બહાર આવે। નેટફ્લિક્સ ઉપર જો આપણે કોઈ વેબ સિરીઝ જોતા હોય ધડી તો એ જ બહાર આવે। तो फोकस लर्न, मतलब आपको क्या सीखना है, आपको क्या पाना है, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। फाइंड अ मेंटर, डोंट एक्सपेरिमेंट। इस बिजनेस में आपको जो अच्छा लगता है उसको आप मेंटर बना लो।
कि इससे मैं सब कुछ सीखूंगा, ये जो करेगा और ये जो कहेगा वो सारा मैं करूंगा। उसको सरेंडर हो जाओ, एक्सपेरिमेंट मत करो, बहुत टाइम निकल जाएगा एक्सपेरिमेंट करने में, पूरी जिंदगी चली जाएगी। चाणक्य ने भी बोला है कि लोगों की गलतियों से सीख लो, अगर गलतियां करने जाओगे तो पूरी लाइफ कम पड़ेगी, बराबर ना। तो आप जिस टीम में काम कर रहे हो उस टीम में कोई अगर आपको बंदा लगता है जो सक्सेस है, तो उसको आप क्या बना दो, आपका मेंटर बनाओ, उसको जाके सरेंडर हो जाओ कि मुझे एनी हाउ इस धंधा में विनोद भाई सक्सेस होना है। आप कल से जो बोलोगे वो मैं करूंगा, जो बोलोगे वो मैं करने के लिए रेडी हूं, लेकिन मुझे कुछ भी करके क्या होना है, सक्सेस होना है। आज से आप मेरे मेंटर हो, सरेंडर हो जाओ उसको जाके, एक्सपेरिमेंट मत करो, बराबर। स्किल सीखने का सक्सेस होने का तरीका है, जो स्किल सीखनी है उसको प्रायोरिटाइजेशन पे लो कि कौन सी पहले सीखनी है, कौन सी बीजी सेकंड कौन सी सीखनी है, थर्ड कौन सी सीखनी है, बराबर ना। उसके लिए आप प्रायोरिटाइजेशन, इसमें से 3 या 4 स्किल निकालो, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट कौन सी है, सबसे पहली जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। जस्ट लाइक हमारे फील्ड में क्या है, सबसे पहला क्या सीखना, डेमो, जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो हमारे सीनियर के साथ हमें जाना है, सीनियर को बोलना है कि सर आप बाजू में बैठो, डेमो मैं करूंगा खुद गब्बर, जहां भी गलती होती है तो आप पीछे से सुधार ले लेगा, लेकिन डेमो तो कौन करेगा, मैं ही करूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है इसमें, मास्टर बनना है। मुझे क्या करना है इसमें, मास्टर बनना है, तो मैं ही करूंगा, तू नहीं करेगा भी, बराबर। आप मेरे साथ आओ, बैठो, अगर कहां भी गलती होती है तो आप बता देना, लेकिन शुरुआत तो मैं ही करूंगा। आप डरते क्यों, जो हूं 6-2-3 ભરત ભાઈ ચૌધરી કેંગરના ગ્લાસમાં એન્ટીઓક્સિડન્ટના ડ્રોપ નાખો ને એટલે પાણી કેવું થાય, પિંક થઈ જાય, બરાબર। અને આજે જે ભાઈ જોઈન થયા છે ને એ ભાઈ જો પિંક એમાં ડ્રોપ નાખે તો કેવું થાય, પાણી પિંક જ થાય। તો હું કામ ડરો તમે, હા હું ડ્રોપ નાખીશ તો જ પિંક થાય, એવું તો છે નહીં, તો ડરવાનું છે શું, કેમ एक्शन लेवानी चालू कर दो, बराबर। कालथी ग्लासમાં હું જ કરીશ, બીજો કોઈ નહીં, બરાબર। અર્જન્ટ એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ, સૌથી પહેલું શું શીખવાનું છે, ડેમો, ધેન આફ્ટર સેકન્ડ બિઝનેસ પ્લાન, વિશાલભાઈ, બરાબર। सेकंड बिजनेस प्लान है, बराबर ना। अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, जो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, आराम से सीखूंगा तो भी चलेगा, तो इसको सेकंड कैटेगरी में दो। जो नॉट अर्जेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, अभी के लिए, तो उसको पेंडिंग रखो, आराम से सीखना। लेकिन अभी जो जरूरी है, डेमो और बिजनेस प्लान, वो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो आज तय करो कि आज से 3 महीने में मैं डेमो और बिजनेस प्लान में मास्टर बन जाऊंगा। मेरी खुद की मालिकी की डेमो किट होगी, जो मैंने परचेस की होगी मेरे पैसों से, बराबर। खुद का पैसा जिसने लगाया होगा तो उसकी वैल्यू होगी ना। और मैं खुद 3 महीने के अंदर बिजनेस और डेमो में मैं क्या बन जाऊंगा, मास्टर बन जाऊंगा 3 महीने के अंदर। इसके लिए मुझे सीनियर का जितना भी सपोर्ट लेना पड़े वो मैं लूंगा, लेकिन 3 महीने के अंदर मैं इसके अंदर क्या बन जाऊंगा, मास्टर। अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, कितने लोग ऐसे आज डिसाइड करते कि मैं कर लूंगा, करना है तो भी, हाँ नहीं करना है तो मत करना, हाथ हाँ મને સારું લગાડવા કોઈ હાથ ઊંચો ના કરતા 2 દિવસમાં, હા સાચું કહ્યું, મારે બિલકુલ સારું લગાડવું નહીં, બરાબર। કરવું હોય તો જ હાથ ઊંચો કરવાનો। કાલ બપોર સુધી હું જ્યારે જ્યારે હાથ ઊંચો કરવાનો કહું એટલે જો કરવાનું હોય તો જ કરજો, એના પાછળ એક લોજિક છે। જો તમારે કરવાનું નહીં, તમે હાથ આમ કરી જશો ને તો નેગેટિવિટી આવશે, બરાબર। એનો એક આખો ટોપિક છે ઇન્ટિગ્રિટી નામનો મારી જોડે, કે તમે આમ કમિટમેન્ટ કરો હું કરીશ પછી ના કરો, કમિટમેન્ટ કરો હું કરીશ પછી ના કરો, તો એની તમારી લાઈફ ઉપર બહુ બેડ ઇફેક્ટ આવે છે, તમારા પર્સનલ લાઈફમાં, એ તમને ખબર નહીં, એટલે તમે કરી જાશો। અહીંયા ઘરના અંગાથી, બાળકો અંગાથી આપણે કેટલા એવા કમિટમેન્ટ કરીએ કે જે આપણે શું ના કરવાના હોય, પૂરા ના કરવાના હોય, તો આપણે કમિટમેન્ટ કરી દઈએ તો બેટા કાલે ચોક્કસ લાવો, ખબર છે કે નહીં લાવવા, साची बात करते हैं ना ऐसा कुछ, तो ऐसा मत करो। करना है तो भी बोलो, नहीं करना है तो मना कर दो कि नहीं होगा। मेरा बेटा मुझे बोलता है कि मुझे कुत्ता लाना है, बराबर। उसने वो कुत्ते का फोटो 10 फोटो अलग अलग निकाल के मुझे रोज व्हाट्सएप करता है, बराबर। मतलब वो मुझे कन्विंस करने का प्रयत्न करता है
कि मुझे ये डॉग लाना है, समझ लो। उसको डॉग बहुत प्यारा है, लेकिन मैंने उसको बोला बेटा मैं जो पैसा कमा रहा हूं ना वो डॉग खरीदने के लिए नहीं कमा रहा हूं, मैं तुझे कभी भी डॉग लाके देने वाला नहीं। क्लियर है, सिंपल। मैं कभी भी उसको नहीं बोलता कि मैं तुझे आज नहीं कल दिलवा दूंगा, चल 6 महीने के बाद दिलवा दूंगा, नहीं, नेवर। मैं तुझे कभी भी ये डॉग दिलवाने वाला नहीं हूं। तुझे अगर डॉग लाना है तो तू सोर्सेज ढूंढ, पैसा कमा, 25,000 इकट्ठा कर और ला। मैं मेरे पैसे से तुझे डॉग नहीं दिलाऊंगा। अभी 7th में तो वो सोर्स ढूंढता है पैसा कमाने का कि कहां से मैं 25,000 इकट्ठा करूं। 7,000 अभी तक कर लिया है, बराबर। तू 25,000 कर ला, कहीं से भी ला। वो मेरी गाड़ी साफ करता है, बोला पापा कितना दोगे गाड़ी साफ करने, बराबर। आपकी बूट पॉलिश कर दूंगा, कितना दोगे। उसकी मम्मी को बोलता है कि ये काम तेरा मैं कर दूंगा, तू कितना देगी। मतलब घर में 1,000-1,200 सैलरी फिक्स हो गई उसकी, बराबर। मतलब प्रोडक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज करनी है। मतलब गलत कमिटमेंट करना ही नहीं। तो इधर भी ये मैंने आपको खाली पेरेंटिंग सेशन का मेरा एक खाली रिव्यू दिया जो मैं लेता हूं पेरेंट का सेशन, उसमें से ये चीज थी जो मैंने आपको बताया। ऐसा बहुत सारा है मेरे पास, पूरा शॉपिंग मॉल। लेकिन इधर भी ऐसे कमिटमेंट मत करो, बराबर ना। कल दोपहर तक ऐसे यही करो कि जो आपको करना है, नहीं करना है तो हाथ ऊंचा। अब बाजू वाले करो, ले હું નહીં કરું સાહેબ હું વિચાર સાહેબ કશું નહીં વિચારે, સાહેબ બધું વિચારીને આયા કમ્પ્લીટ, બરાબર। એટલે તમારે વિચારવાની જરૂર નહીં, હું શું વિચારીશ। टारगेट फर्स्ट ईयर एक्वायर स्किल, मतलब हमने जो स्किल का आपको एक फोटो में भेजूंगा उसमें से आपको पहले साल में कौन सी 4 या 5 स्किल आप एक्वायर करोगे, बराबर ना। उसको क्वार्टरली डिवाइड कर दो कि पहले 3 महीने में करूंगा, दूसरे 3 महीने में ये करूंगा, सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्वार्टर में उसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो। 1 साल में आप मास्टर बन जाओगे, 1 साल के बाद आप करोड़पति बन जाओगे। मैं गारंटी देता हूं। आपको लगता है कि करोड़पति बनना इतना आसान है? हाँ, इतना आसान है। पहले मगज में फिट कर दो कि करोड़पति बनना आसान है, मुश्किल नहीं, बराबर ना। आराम से कर, खाली आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, बराबर ना। हाउ टू लर्न फास्ट। तो पहले तो जो आपको स्किल सीखनी है उसका गोल फिक्स कर दो। प्लानिंग, ब्रेक द स्किल टू सब स्किल, मतलब वो स्किल सीखने के लिए उसकी जो सब स्किल है उसको एक एक करके सीखो तो ऑटोमेटिकली वो स्किल आप सीख पाओगे। 20% एफर्ट विल गेट 80% ऑफ रिजल्ट। वो सीखने के लिए आप 20% भी एफर्ट करोगे ना तो आपको कितना % रिजल्ट मिलेगा? 80%। लेकिन आपका एफर्ट तो होना चाहिए वो सीखने के लिए। आप एफर्ट ही नहीं कर रहे हो। आप डेमो करने के लिए ट्राई नहीं करोगे, मैं खुद जाके आप डेमो कर लूं। आप 20% एफर्ट करोगे ना, पहले दिन से मैंने जब डेमो देखा तब से मैं ही डेमो कर तो मैं सक्सेस हूं। मैंने अथॉरिटी ले ली कि मेरा बिजनेस है तो मैं सक्सेस हूं, बराबर ना। तो आप 20% टिप्स टू लर्न स्किल टू फास्ट, ज्वाइन ग्रुप। मतलब जितने भी आप 4, 5, 10 लोग आपकी टीम में हैं जो ऐसी कोई स्किल डेमो करना सीखना चाहते हैं, कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो आप 8-10 लोगों का क्या बना दो, एक ग्रुप बना लो अलग से। और जितने भी आइडियाज वो स्किल के रिगार्डिंग आते हैं वो एक दूसरों को क्या करो, शेयर करो, बराबर। कुछ वीडियो ऐसे हैं जो दूसरों को हेल्प हो ऐसे डालो, उसका अलग ग्रुप बनाओ। सब जनरल ग्रुप में मत डालो। जो सीखना चाहते हैं ऐसे लोगों का ही ग्रुप बनाओ, बराबर ना। पुट द पनिशमेंट, आप फिक्स करना है आपको कि ये इतना मुझे इतने समय में सीखना है, ये करना है, इसके लिए रोज मैं ये एक्शन लूंगा। अगर वो एक्शन आज आपने नहीं ली है तो अपने आप को क्या करो, पनिश करो कि मैंने एक काम आज मुझे करना था जो मैंने नहीं किया, तो आज के पूरे दिन में मैं चाय नहीं पीऊंगा। मतलब मुझे चाय पीने का शौक है तो मैं अपने आप को क्या करूंगा, पनिश करूंगा कि आज तुझे चाय नहीं मिलेगी। मैं खुद ही बोलूंगा मुझे पनिश योरसेल्फ। आप खुद करो तभी जाके वो चीज आपको मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। और विजुलाइज, वो जो भी सीखना है उसको क्या करो, आप विजुलाइज करो। ये सबसे बड़ी चीज है विजुलाइजेशन, कि मैं डेमो कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे से क्लोजिंग आ रहे हैं, लोग मेरी बात सुन रहे हैं, लोग मुझे मान रहे हैं। हाँ, ऐसा विजुलाइज करना चालू करो। तो आप विजुलाइज करोगे ना ऐसा, बराबर, तो क्या होगा, ऐसे ही आपके सामने इवेंट आएगी, मतलब ऐसी घटनाएं आपके साथ घटेगी जो आपको चाहिए, बराबर। तो ये कैसे फास्ट सीखना है वो है 20 आवर्स कमिटमेंट। 1 महीने में कम से कम 20 घंटा कितना सीखने के पीछे लगाओ, जिसमें आपको अच्छी ऑडियो बुक सुनोगे, जिसमें आप कोई बुक पढ़ोगे, जिसमें आप प्रैक्टिकल जाके करोगे, खुद डेमो करोगे,
मतलब आप शुरुआत में ऐसे 10-15 डेमो करो। जो डेमो क्यों कर रहे हो आप? सीखने के लिए। वहां से डिवाइस आ रहा है कि नहीं आ रहा, छोड़ दो, अल्टीमेट आएगा। उसको आप जब छोड़ दोगे ना तो आएगा, क्योंकि वो आप फ्री हो जाओगे। आप टेंशन में नहीं होगे कि मुझे इसको डिवाइस, बाबू भाई को मुझे डिवाइस देना है, वो मुझे टेंशन ही नहीं होगा। मैं बाबू भाई के पास डेमो करने गया हूं, क्यों? सीखने के लिए। तो बाबू भाई मुझसे कन्विंस हो जाएंगे गारंटी से, क्योंकि मुझे टेंशन ही नहीं है कि बाबू भाई लेंगे कि नहीं लेंगे। जब मैं सेल करने जाता हूं तो मेरे दिमाग में टेंशन रहता है कि बाबू भाई क्या सोचेंगे। समझ रहे ना? तो ऐसे 20 घंटा आप दो सीखने के लिए, 1 महीने में, ज्यादा नहीं। 20 घंटा नहीं दे सकते हम सीखने के लिए, एग्री करते हो? हाँ, 20 आवर्स कमिटमेंट। और ये 20 घंटा अगर आपने दे दिया तो आप मास्टर बन जाओगे 6 महीने में, 3 महीने में, कोई भी स्किल में जो हमारे बिजनेस में चाहिए। बराबर? और 20 घंटे में आपने नहीं दिया तो अपने आप को पनिश करो। बराबर? इमर्स योरसेल्फ। मतलब जो सीखना है ना उसके अंदर क्या करना है, डूब जाओ, डुबकी लगा दे। इमर्स का मतलब है ગુજરાતીમાં કહું તો તરબોળ થઈ જાઓ, એના રસ તરબોળાય એની અંદર જ। मैं मेरी आरटीपी होती है ना, या कोई भी मेरी मीटिंग होती है, समझ लो, तो उसके लिए जब मैं मतलब खाना खाता हूं, जब मैं नहाता हूं या जब मैं ड्राइविंग करता हूं, तो बस मुझे एक ही चीज मेरे दिमाग में रहती है कि मैं ऐसा क्या क्या बोलूंगा, क्या क्या करूंगा। इसको मैं सतत क्या करता हूं, सोचता हूं उसके बारे में, इसके बारे में मैं विजुअलाइज करता रहता हूं। बराबर ना? उसके ही बारे में मैं सोचता हूं, जो मुझे करना है, जो मुझे नहीं करना है, जो मुझे नहीं चाहिए, उसके लिए मैं नहीं सोचता। जो मुझे सीखना है उसके बारे में मैं सोचता। मतलब 3-4 दिन मेरे ऐसे जाते हैं ना कि मैं आरटीपी में उदयपुर में फिजिकली आज आया, कल आया हूं, समझ लो। आज मैं इधर स्पीच दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में 4 दिन से इस हॉल में था, क्योंकि हॉल मैंने पहले से देखा हुआ था कि मैं कैसे खड़ा होऊंगा, मेरे सामने कैसे ऑडियंस बैठी होगी। बराबर? मैं विजुअलाइज ऐसे ही करता था, मैं क्या क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, लोगों का क्या रिप्लाई मिलता होगा, बस ऐसे ही सोचता ही था। तो ऑटोमेटिकली देखो, ऑडियंस मैंने जितनी सोची थी ना उससे भी ज्यादा मेरे सामने बैठी। बराबर? तो ये चीज है दोस्तों, काफी जो सीखना है। किसी के पास आप डेमो करने के लिए जा रहे हो तो आप विजुअलाइज करो, इमर्स, उसमें डूब जाओ बस, कि मैं उसको ऐसे ऐसे बताऊंगा, ये करूंगा, वो मुझे इतने ध्यान से सुनेगा। हाँ, डेमो के कंप्लीट होने के बाद वो मुझे चेक भी देगा, उसको बहुत मेरा कंसेप्ट अच्छा लगेगा। बस ऐसा सोचो। ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, ये आपको वो रास्ते पे ले जाएगी जो आपको चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो, नेगेटिव सोचते हो कि समझाने के बाद क्या होगा, ले लिया तो बहुत हार गया, जो ना कह तो हारू, और ना कह तो हारू, ये अगर बना ना कर दे तो अच्छी चीज है। मतलब कौन सा थॉट्स आया हमारे दिमाग में, नेगेटिव, समझ वो मत लाओ। ऐसे विजुअलाइज करो आप, जो आपको चाहिए, जो नहीं चाहिए, इमर्स, उसमें डूब जाओ। जो सीखना है, जो करना है, बराबर, उसके अंदर आपको क्या करना है, डूब जाना है। यू अवॉइड समथिंग, यू एक्वायर समथिंग। आपको इसके लिए कुछ चीजें, ये सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी। जो आपका कंफर्ट जोन है उसको क्या पड़ेगा ना, अवॉइड करना पड़ेगा। भाई मान लो कि आप 9 से 5 जॉब करते हो, 9 से 5 आपके ऑफिस में जाते हो, तो 5 से 10 बजे तक क्या करते हो, सोचो आप। तो उसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं है, तो उसको क्या करो, आप अवॉइड करो ना। जैसे कि आपको 1 घंटा टीवी देखना का आदत है तो उसको अवॉइड करो। खाना खाने के बाद एक जगह पे जाके 2-4 दिन मिलती है, रोज 1 घंटा गपाटे सपाटे लगा तो उसको बंद करो। हाँ, अवॉइड समथिंग, एक्वायर समथिंग। कुछ ऐसी चीजें जो आपकी रूटीन लाइफ में अभी है उसको आपको क्या करनी पड़ेगी, अवॉइड करनी पड़ेगी। तभी जाके आप कुछ क्या कर पाओगे, एक्वायर कर पाओगे, कुछ हासिल कर पाओगे। तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। बराबर? तो आपको कुछ चीजें अवॉइड करनी है। बराबर? मैंने बहुत सारी चीजें अवॉइड की जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मैं भी कंफर्ट जोन में था, ऐसा नहीं हर बंदा होता है। मुझे एक आदत ऐसी थी कि खाना खाने के बाद मैं सोसाइटी में चक्कर लगाने के लिए निकलता था। बहुत बड़ा मेरी सोसाइटी में कॉमन प्लॉट है, बहुत बड़ा, शायद बहुत कम सोसाइटी में होगा इतना बड़ा कॉमन प्लॉट। मतलब आप 4-5 चक्कर लगा दो, मजा आएगा। चक्कर लगाने के बहाने जाता था, समझिए। लेकिन होता था कि बहाना था चक्कर लगाना। उधर एक जगह पे मेरे 4-5-6 दोस्त बैठते थे और गप्पाटे लगाते थे। शैलेश भाई
एक्चुअली मैं क्यों जाता था, मैंने सोचा कि मैं क्यों जा रहा हूं, चलने के लिए जा रहा हूं ना, चलने के लिए नहीं जा रहा। वह ऐसे चलते चलते वहां जाके मैं क्या करता था, खड़ा रह जाता, और 1-1.5 घंटा कहां निकल जाता था मुझे मालूम नहीं पड़ता था। और वो चीज मुझे वहां खींच के रोज ले जाती थी, रोज ले जाती थी। मुझे लगा कि ये मुझे क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, तो मैंने अवॉइड कर दिया। आज 3 साल हो गए, कितने साल, 3 साल हो गए मैं उधर नहीं गया, अवॉइड किया। मैं जब कार लेके सोसाइटी से बाहर निकल रहा था तो सोसाइटी के नाके पे एक पार्लर है, वहां भी 4-5 दोस्त खड़े रहते थे, तो मैं भी कार साइड में करके वहां खड़ा रहता था, बराबर। वहां बातें चलती थी, मजा आता था, 1-8 घंटा कहां निकल जाता था मालूम नहीं पड़ती, बराबर। 3 साल हो गए वहां मुझे खड़े रहे, अवॉइड किया मैंने। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं जो मेरे साथ हुआ है। मॉर्निंग में दूध लेने के लिए वो पार्लर पे जाना, बराबर, तो मैं वहां दूध लेने के लिए जाता था, लेकिन आधा-पौना घंटा निकाल देता था, तो मेरे घर वाले बोलते थे कि आपको दूध लेने के लिए नहीं जाना है, बराबर। मैं किसी और को, मेरी मिसेज बोलते मैं बेच दूंगा, आप आते नहीं हो जाते हो, रियली बता रहा हूं मैं। लेकिन वो सारी चीजें मैंने 2.5-3 साल से क्या कर दिया, बंद कर दिया। अवॉइड समथिंग, एक्वायर समथिंग, वो चीज मैंने, वो मेरा प्रोडक्टिव टाइम था जो मॉर्निंग का, जो मैंने इसमें लगा दिया सीखने के लिए। मैं मेरे रूम में जाके बैठ जाता हूँ, आधा-पौना घंटा कुछ पीपीटी बना लेता हूँ, कुछ पढ़ लेता हूँ, किसी को फोन करना है तो कर लेता हूँ, स्ट्रक्चर एनालिसिस कर लेता हूँ, वही करता हूँ जो मुझे करना है, जहां मुझे पहुंचना है वही दिशा में, और कोई नहीं। समझ में आ रही ना बात? तो अवॉइड समथिंग, एक्वायर समथिंग। तो मैंने सारी चीजें अवॉइड करना चालू की। मैंने बिजनेस चालू किया, 6 महीने के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें इसमें सीखी, सीखने के लिए निकाली। हाँ, ध्यान आप रहे, आज मुझे 4 साल इस बिजनेस में कंप्लीट हुए। 4 साल में 3,500 परिवार को हमने हेल्थ, वेल्थ और सिक्योरिटी, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसका 3,500 लोगों को हमने सोल्यूशन दिया। तो 3,500 फैमिली की लाइफ में हमने वैल्यू ऐड की, तो हमें क्या मिला? हाँ, तो हमें मिला जो मैंने अभी बताया, ये 90 CR लिखा है, जो अभी 100 CR हो गया है का टर्नओवर। समझ लो, सोचो आप कि आप जो बिजनेस में हो, आपके रिलेटिव जो धंधा कर रहे हैं, जिसमें 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का रोकान है, जिसको लोग धंधा समझते हैं, उसमें 4 साल में 100 करोड़ का बिजनेस हो सकता है। और आप जो इन्वेस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपने किया है, ओनली 3 लाख का इसमें हो सकता है। और ये बड़ी चीज नहीं है दोस्तों, मैंने तो 100 करोड़ का टर्नओवर किया, लेकिन आप जो धंधे में, वो धंधे में एक ऐसे बंदे हैं 2 या 3 या 4 कि जिनको 7 साल इस धंधा में हुआ। मैंने तो 100 करोड़ का टर्नओवर किया है, उन्होंने तो 100 करोड़ कमा लिए, प्रॉफिट किया 7 साल के नेट प्रॉफिट। सोचो कितने बड़े बिजनेस में, लेकिन हमारा ध्यान किधर है? इंपॉर्टेंट वो चीज, खाली ऐसा नहीं है कि टर्नओवर हुआ, इनकम भी लिए। ताली ना पड़ी है। बिजनेस चालू किया था महसाना से, अब 7 कंट्री में बिजनेस चला गया। लोग जहां पैसा कमाने के लिए जाते हैं, साइड में वाइब्रेट करिए बचो, ये फरीदी आपसे महसाना से बिजनेस चालू किया था। आज कितने कंट्री में जा चुका है? 7 कंट्री में। सोचो आप, जहां लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं ना, वहां से हमारे घर में पैसे आते हैं हमारे अकाउंट में। हाँ, ऐसे जो सेमिनार में हम बैठे 600 से ज्यादा, अभी तो 1000 तक ये फिगर पहुंच चुका है जो हम सेमिनार कर चुके हैं ऐसे, बराबर। इससे क्या मिला? तो मेरी सक्सेस है मेरी टीम की। तो आज 50+ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है मेरी टीम में जो मोर देन कितने इनकम ले रहे हैं? 5 लाख से ज्यादा। ऐसा नहीं कि खाली मैं पैसा कमा रहा हूं, जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है मंथली, ऐसे 50 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर। सोचो आप कि किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, जहां आपको ऐसे मिलेंगे लोग कि जिसकी सैलरी कितनी होगी 1 महीने की? 5 लाख से ज्यादा। तो कितने बड़ी कंपनी होगी तभी वो पॉसिबल है कि
आपके 50 प्लस ऐसे एम्प्लॉय हैं जिसको आप कितनी सैलरी दे रहे हो? 5 लाख से ज्यादा। कितने करोड़ की इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी तभी ये पॉसिबल बनेगा? 60,000। हाँ बराबर, एवेन्यू की बराबर। 200 से ज्यादा, 300 से ज्यादा इतने डिस्ट्रीब्यूटर जिनकी इनकम मोर देन कितनी है? 2 लाख रुपीज महीने की। सोचो कितना बड़ा काम है, 4 साल में सब हुआ है बराबर ना। 10 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर है वो जो ऑलरेडी करोड़पति हैं, जिन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा इनकम ले ली। ऐसे 10 से ज्यादा लोग 4 वर्ष में घना એવું लगा कि साहब वो करोड़पति बनी जो उनको हार ऐसा। मतलब मैं जब करोड़पति का बोलता हूं तो आपको कैसा लगता है कि अगर 4 साल में अगर मैं करोड़ कमा लूं ना तो भी बहुत बड़ी चीज है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? लेकिन आप वो धंधे में हो सर, आप तो बनोगे ही बनोगे। देखो इधर कितने लोग बन गए हैं? 10 से ज्यादा। मेरी टीम में जो लोग हैं जो ऑलरेडी इसमें से करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। सोचो यही हॉल, यही कॉन्फ्रेंस हॉल। जब मैंने शिक्षे क्रिएट किया, मतलब खुद का मेरा शिक्षे बना, जब वो टाइम ये हॉल में जो इधर बैठे ना आप, इससे मेरा थोड़ा पुराना रिलेशन है जो मैं आपको कल शेयर करूंगा इसके बारे में। टाइम मेरे पास थोड़ा कम बराबर, तो इसके लिए मैं आपको कल इसके बारे में थोड़ा बताने वाला हूं कि कितना इधर से मेरा क्या कनेक्शन है इस हॉल से। और एक छोटी सी प्रयास मैंने इस हॉल में एक बार की थी और वहां से आज कहां तक मैं पहुंचा वो आपको मैं बताऊंगा बराबर। इसी हॉल कि अगर आपका विजन हो तो आप कहां पहुंच सकते हो बराबर, वो मैं बताऊंगा आपको। 2500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है जो पाइपलाइन में है दोस्तों बराबर। इनकम स्ट्रीम ऐसी चीज है दोस्तों कि जो रिच लोग जानते हैं ना, कुछ ऐसा चीज जो हम पुअर या मिडिल क्लास लोग जानते नहीं है बराबर ना। तो ये चीज मैं आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूं बराबर। आर यू रेडी टू लर्न सीक्रेट ऑफ रिच? जानना है आपको? ओके देखो इसमें दोस्तों ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बेसिक दिखाई है। एक्टिव, पैसिव और लिवरेज की एक्टिव इनकम होती है जिसमें आपका होना जरूरी है, पैसिव जिसमें हमारा होना जरूरी नहीं है, और लिवरेज क्या है? बेनिफिट, फायदा, दूसरे का लाभ लेना। जस्ट लाइक आप आपकी खुद की कोई ब्रांड बनाने जाओगे, खुद की कंपनी बनाने जाओगे तो बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। एग्री करते हो? लेकिन दूसरी बहुत सारी ब्रांड है, उसका फायदा ले लो ना। हमें ब्रांड क्यों बनानी है? ब्रांड बनाने के चक्कर में मत पड़ो, समझ लो। वॉरेन बफेट ने क्या किया? खुद की कोई ब्रांड बनाई नहीं। मार्केट में उसने सोचा कि इतनी बड़ी ब्रांड है, मुझे कहां ब्रांड बनाने की जरूरत है। वो सब ब्रांड में उन्होंने क्या किया? इन्वेस्ट किया। वो सारी ब्रांड का जो इनकम है वो लिवरेज बोलते हैं इसको बराबर। तो इनिशिएट एक ब्रांड है जो 153 कंट्री में चल रही है, कैंगन वाटर। हमें क्या करना है? कोई ब्रांड नहीं बनानी है, हमें सीधा इसका क्या लेना है? फायदा उठाना है बराबर ना। तो इनकम जो होती है, जो मिडिल क्लास की इनकम होती है वो कैसी होती है? एक्टिव होती है बराबर ना। और जो रिच लोगों की इनकम स्ट्रीम होती है वो कैसी होती है? पैसिव और लेवरेज होती है। तो हमें इस इनकम में से इस इनकम में हमें कन्वर्ट होना है। ये रिच का सीक्रेट है दोस्तों बराबर ना। हाउ मच इन्वेस्टमेंट फॉर फ्रीडम? हम एक्जेक्टली बेचते क्या है? साहेब मशीन बहु मोंघू पड़े છે, મશીન વેચો તો મોંઘું પણ વેચવાનું જ બંધ કરી દો। અમે અત્યાર સુધી તમને બતાવ્યું એમાં કોઈ જગ્યાએ વચ્ચે મશીન આવ્યું? કેવી રીતે મોંઘું પડે? आवे तो मोंघू पड़ो ना। हूँ तो एनो बिजनेस वेचू छू ना। मैं क्या सेल कर रहा हूँ? उसको अपॉर्चुनिटी सेल कर रहा हूँ कि तो तेरी इनकम बढ़ाना चाहता है तो तू मेरे पास आ। तू बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट में धंधा करना चाहता है तो तू मेरे पास आ। तू मिडिल क्लास ट्रैप ब्रेक करना चाह रहा है तो तू मेरे पास आ। तू ऐसा कोई बिजनेस करना चाहता है जो तेरा कैरियर बने तो तू मेरे पास आ। हाँ, और आज मार्केट में और भी बिजनेस चल रहे हैं। देखो इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है? हाँ, अगर आप चाह के एजेंसी लेने के लेके जाओगे 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है। हाँ, रजवाड़ी चाह, बहुत सारी ब्रांडें हैं, टी पोस्ट, जीवराज, वाघ बकरी। मतलब वो चाय की बात कर रहे हो, चाय पत्ती की बात नहीं कर रहा हूं, चाय पीने की बात करो। ब्रांड आ गया जो टी पूरा शॉप खुलता है जहां पे आप बैठ के चाय पी सकते हो आराम से बराबर ना। 10 से 15 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है बराबर ना। एग्री करते हो? वड़ा पाव, चाय छाछ वाले, चाय वाले, फोन वाले,
कितने वाले हैं, बराबर। सब 10 से 15। और इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी इनकम क्या लेनी है? इनकम क्या लेनी है? 50,000, 1 लाख, इससे ज्यादा कोई नहीं कमा सकता इसमें। तो मैं आपको जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप बेच रहे हो और दे रहा हूं, वो तो मेडिकल डिवाइस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। और इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट है? एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आपको खाली कितना पैसा लगाना है? 2,18,500 ओनली। कोई 15 लाख 20 लाख नहीं लगाना है। लोग चाय के लिए 15-20 लाख लगाते हैं। तो मैं मेडिकल डिवाइस का डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहा हूं। और आपको वर्किंग कैपिटल रखनी है, कितनी आपके पास? 1 लाख। ये वर्किंग कैपिटल। हमारे पास सीए बैठे जतिन भाई, इधर भी दूसरे सीए बैठे मितेश भाई। हाँ, જે ધંધાની વર્કિંગ કેપિટલ ના હોય, અમારું પોતાનું સૂત્ર છે નવું, જે ધંધાની વર્કિંગ કેપિટલ ના હોય એ ધંધાનું બાળ મરણ થાય. શું થાય? બાળ મરણ. આ મોટો થતા થતા मतलब 2,18,500 में आप आपका धंधा चालू करते हो. मतलब एक शॉप चालू होती है, आप कपड़े का शोरूम करते हो, तो आपने मतलब फर्नीचर बनाया, दुकान लिया 15-20 लाख का. बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को. हेलो, बराबर. और उसमें 50-60 लाख का आपने लाके कपड़ा भर दिया. अभी आपका धंधा चालू हो जाएगा? नहीं. अगर 50-60 लाख उसने लगाया, 20-25 लाख फर्नीचर किया है, तो कम से कम 20-25 लाख आपके पास क्या होनी चाहिए? वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, जिसका यूज आप बिजनेस का टर्न ओवर करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए करोगे. तो हमारे पास कितनी रखनी है? खाली 1 लाख. और वो किसी को नहीं देना है, आपको आपके पास रखनी है. आपको जहां जहां लगे कि ये खर्च करना, जैसे कि आरटीपी में आना है तो ये वर्किंग कैपिटल में से 4,000 देना है, घर से नहीं देना है. आप बोला नहीं हुई चलो मैं मार घरना 4,000 આપે ના ભાઈ, તમારા ઘરના નહીં. આ ધંધા માટે જે વર્કિંગ કેપિટલ 1 લાખ તમે મૂકી છે, એમાંથી 4,000 આપીને તમે આવ્યા છો. આ ધંધામાં 4 મશીન વેચાણ 52,000 કમિશન આવ્યું, તો કોનું આવ્યું? તમારું આવ્યું? ના, ધંધાનું આવ્યું. एक करियाणाની दुकान चालू થાય અને 1 મહિનાની અંદર 50,000 પ્રોફિટ કરે રાજુભાઈ, તો એ 50,000 રૂપિયા ઘેર લઈ જાય. શું કરે? બીજા મહિનામાં એ 50,000 રૂપિયા લગાવીને વધારે માલ લાવે. એગ્રી કરો છો? જો ઘેર લઈ જાય તો શું થાય? ધંધો બંધ થઈ જાય. તો એ 52,000 રૂપિયા કોના છે? તમારા? ના, આ ધંધાના પૈસા છે. તો એ પૈસાનો ક્યાં ઉપયોગ કરવાનો? આ ધંધામાં કરો ને, તો મોટા પૈસા આવશે. બરાબર? ધેટ્સ કોલ્ડ વર્કિંગ કેપિટલ. MBA चाय वाला, जानते हो सब उसको? उसके वीडियो सुनना. तो उसने जब चाय का बिजनेस डेवलप किया तो उसने बोला था कि इसमें मैं जितने भी पैसा कमाया तो मैं 3 साल तक इसमें से 1 रुपया इसमें से मैंने नहीं निकाला. इवन मैं मेरे कपड़े भी उस धंधे से पैसे से मैंने नहीं खरीदे, क्योंकि मैं जानता था कि ये मेरे पैसे नहीं है, ये मेरे धंधे के पैसे. इसमें से मैं मेरा कपड़ा नहीं खरीद सकता. तो बहुत बड़ी ब्रांड बन गया है, समझ लो. लेकिन अगर उसमें से उसने खर्चा का खुद के लिए करना चालू कर दिया होता तो खत्म. आज हम उसको नहीं जानते होते. समझ गए ना मेरी बात? तो बहुत इसमें करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल नहीं, ओनली 1 लाख. ओनली 1 लाख. और 1 लाख खर्चोगे तो बहुत सारा पैसा आएगा. वो कहां खर्चा है, कैसा खर्चना है, वो सेलिंग्स में बताएंगे. उसको हिसाब अच्छा है सेलिंग्स में. यू विल बिकम ये 2,18,500 में हम आपको क्या देंगे? will become a partner of our powerful system. बराबर. दूसरा क्या है? You can use our brand to grow your business. आप आपके हमारे बिजनेस को, आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए आप आपके हमारी ब्रांड को यूज कर पाओगे. मेंटरशिप फॉर डेवलप योर राइटर स्किल, मतलब आपके अंदर स्किल डेवलप करने के लिए आपको एक मेंटर भी मिलेगा, आपको इवेंट मिलेगी. बराबर. जो हमारी होती है गेस्ट मीटिंग हम जिसको बोलते हैं, अगर जितनी भी इवेंट्स होती है वो सारे डेवलप करने के लिए यूजर आईडी मिलेगी. देन आफ्टर आपको बिजनेस नॉलेज मिलेगा बिजनेस डेवलप करने के लिए. देन आफ्टर आपको डिवाइस फॉर डेमो पीस. देखो पहले हम किसको आगे करते थे? डिवाइस को. साहब તમારા પરિવારને હેલ્થ માટે આમાંથી કયું મશીન લેશો? એકે નહીં પેલો એવું કે, બરાબર. પણ આપણે ડિવાઇસ કેવી રીતે આપીએ છીએ? ડેમો પીસ માટે. તમને કંપની ડિવાઇસ આપશે સાહેબ, પેલો કે 2,500 મશીને મળશે. હા, તો બધું મળશે, ખાલી મશીન નહીં. શા માટે આપશે? ડેમો પીસ માટે. હેલ્થની વાત આવો તો એના ઘરે મશીન લાગશે એટલે એના પેટમાં પાણી જાય કે ના જાય? તો હેલ્થના ફાયદા તમે એને સમજાયો હોય તો મળે, ના સમજાયો હોય તો મળે ના મળે. સિમ્પલ છે. બરાબર. ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है.
बराबर। पैटर्न बिजनेस प्लान है, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाता हूं, ये सारी चीज कल आपको बताई थी जतिन भाई ने, बराबर ना। लेकिन ये बिजनेस आप करोगे तो आपको बताया था कि 24 to 30 मंथ फास्टेस्ट वे टू 6 से 2-3, जो आपको जिसने बताया था कमल भाई ने, कि आप 21 महीना, 21 से अगर ज्यादा पकड़ो तो 24 से भी ज्यादा पकड़ो तो 30, अगर 30 महीने तक भी वो -3 आप कंप्लीट करते हो तो कम से कम वो जर्नी में आपकी 2 से 2.5 करोड़ इनकम होती है। मतलब यू बिकम अ करोड़पति। कितने साल में बन जाओगे? खाली 30 महीनों में। अभी सोचो कि आप जो काम कर रहे हो वो कितने महीनों से कर रहे हो और आज तक आपको सपना भी नहीं आया कि आप करोड़पति बनोगे। हेलो, तो आपको नहीं लगता कि आपको काम बदलने की जरूरत है? हाँ, तो बदलो, चौक मत मानो। हाँ, चौक मत मानो। खाली करोड़पति बनवाने की बात नहीं करते। योर अर्निंग इनकम मोर देन 1 करोड़, यहां पहुंच जाओगे 24 महीने के या 30 महीने के बाद आपकी साल की इनकम मोर देन 1 CR होगी हमारे प्लान के मुताबिक। कितने लोगों की है? जो लोगों ने इधर, लेकिन इसके लिए हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। एक गरीब दिमाग कभी अमीर आदमी पैदा नहीं कर सकता है, बराबर ना। करोड़पति बनने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, जो इन्वेस्टमेंट करो आप, आपके घर पे कोई बंदा आएगा और बताएगा कि हर साल 10,000 भरो हर महीने, SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपको 12 से 16% रिटर्न मिलेगा और 20 साल के बाद आप क्या बन जाओगे? करोड़पति। 20 वर्ष પછી કરોડપતિ બનીને મારા શું કરવાનું કહો? શું કરવા બનવું? મારા નહીં બનવું 20 વર્ષ પછી કરું। તારી જોડે એવો કોઈ રસ્તો છે કે હું 2 વર્ષમાં કરોડપતિ बनूं? समझे से मारी बात? आपको बहुत सारे लोग आपके घर करोड़पति बनाने आते हैं, लेकिन 20 साल बाद। और मैं एक सिंगल बंदा हूं जो आपके सामने आज खड़ा हूं कि मैं आपको बात करूं कि आपको मैं 2 साल में करोड़पति बना सकता हूं, लेकिन अगर आपकी मर्जी हो तो। लेकिन आपको अगर 20 साल में बनना है तो SIP कर लो, कहेंगे दो 20 साल के बाद धीरेन भाई यू बिकम अ करोड़पति, बराबर। लेकिन उस टाइम करोड़ रुपए में आपको अच्छा मकान भी नहीं मिलेगा, आज भी नहीं मिल रहा है। 20 साल की बात छोड़ दो। हाँ, मतलब आज आप कोई काम, मैंने शुरुआत में बोला था कि 4, 5, 6 साल से कर रहे हो और आप 1 साल के 1 करोड़ रुपया नहीं कमा रहे हो, तो आपको एनालिसिस करने की जरूरत है। अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो पैरालिसिस होगा अकाउंट में। ઘણા તારે બેલેન્સ કેટલું પડ્યું એમ દેખાવા લાગી છે કે છેલ્લા આટલું હતું એકાઉન્ટમાં, બરાબર। પેરાલિસિસ, બરાબર। એટલે એનાલિસિસ કરવું જरूरी છે। ઘણા લોકો થાય સાહેબ બધા કરીએ તા, हाँ બધા કરીશું, કેમ કે આ बिजनेस करने के लिए हमें टैलेंट की जरूरत नहीं है, हमें किसी चीज की जरूरत है? स्किल की। और स्किल एक्वायर हो सकती है, आप सीख सकते हो। मुझे बोलना नहीं आता था, आप जानते हो, रियल में बता रहा हूं। मुझे बोलना, मुझे सबसे ज्यादा चीज डर लगता था कोई चीज से, तो इससे लगता था सबसे ज्यादा। मैं 1st से लेकर 10 तक पढ़ा हूं, जितने भी मेरे टीचर्स हैं सबका नंबर दे दूं, बराबर। आपको बताएंगे कि हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा शाही बच्चा कोई था तो वो कौन था? भरत। ऐसा बोलेंगे। मैं कितनी भी मार खा लेता था, लेकिन कभी भी मैं खड़ा नहीं होता, कभी भी खड़ा नहीं हुआ। जो पनिशमेंट देनी है वो दे दो, बाकी बोलવાનું આપણે નહીં બોલી, હું નક્કી જ फाइन। मतलब ये सबसे बड़ी कमजोरी थी मेरी, लेकिन इसके अंदर मैंने इसको सबसे बड़ी मेरी क्या बना दी? ताकत बना दी, एक्वायर किया। मैंने बोला ना कि मैंने 10 लाख खर्चा किया, सीखा, नॉलेज लिया, कैसे खड़ा रहना है, कैसे बोलना है, कैसे माइक पकड़ना है, क्या करना है, सब कुछ सीख लिया। आप भी सीख सकते हो, बराबर। ये सारी स्किल्स है, इसमें से देख लो। फिर से एक बार बता दी, दिखा दिया आपको कि आपको इसमें से कौन सी 4 नो फोटो खींची ली, तो एक ग्रुप में नाखी देते, अमृत केंद्र ग्रुप में। इसमें से कौन सी 4 स्किल आपको 1 साल में एक्वायर करनी, बराबर। वो आज रात तक आपको डिसाइड करनी है और आपको एक मेंटर चूज करना है और वो मेंटर को सरेंडर होकर बोलना है कि मुझे ये 4 सीखनी है, आप मुझे हेल्प करो। ओके। जो लोग पैसे इसमें लगाए हैं और आज हमारे साथ जुड़े ऐसे लोगों की कुछ आपको बताता हूँ। विनोद भाई हमारे पास डीप इरिगेशन का बिजनेस करते थे। विनोद भाई आपके बीच में है,
बराबर, मोर देन 12 लाख इनकम ले चुके हैं अभी हमारे साथ। दूसरे इंटरेस्ट देखो, अभी फोटो बताना चालू किया है, किसी का अगर रुक गया तो हाथ ऊंचा करना, गलत मन वाला साहब हमारो फोटो ना बताए, अगर टाइम ना अभावे कदाच रही गयो हो, बराबर, एडिट करवानो। किरणभाई पटेल टीचर तथा बिजनेस पार्टी प्लॉटनो છે, આ ધંધામાં 12 લાખથી વધુ ઇન્કમ લઈ ચૂક્યા છે, બરાબર। હિમાંશુભાઈ એન્જિનિયર છે, જોબ JSW બાડમેર, પાછળ ઉભા સાહેબ, વાર્ષિક 36 લાખ રૂપિયા પગાર, કેટલો હતો એકદમ લાઈટ હતું જ, હાલ છે નહીં। આજે અમારા બિઝનેસમાં છે 13 લાખથી વધુ ઇન્કમ લઈ ચૂક્યા છે, આ મહિનામાં 15 લાખ ઉપર નીકળી જશો ને હિમાંશુ? હા, તો બરોબર। ડિમ્પલબેન સ્કૂલ ઓનર છે, એમની સ્કૂલ ચાલે છે, અહીંયા બેઠા છે ડીસામાં, બરાબર। આજે મોર દેન 2 લાખ ઇન્કમ છે મહિનાની, જોઈ શકો છો તમે એમનું, બરાબર। નિકિતાબેન હાઉસવાઇફ છે, મોરબીથી, તમારા સવારે શેરિંગ આપી, બરાબર, 60 હજી કરી ગયા, મોર દેન 2 લાખ ઇન્કમ છે મહિનાની। આ તમારી વચ્ચેના જ લોકો બતાવું છું કે આ લોકો ધંધામાં આવ્યા, આ સ્કિલ શીખ્યા, આના પહેલા નિકિતાબેનને કે ડિમ્પલબેનને ટાંકણી નહીં વેચી, બરાબર, સાચી વાત, એગ્રી કરો છો? હા, ભરતભાઈ પટેલ આરોનું સેલ્સ એન્ડ સર્વિસનું કામ હતું, અને એમની ભૂલે થઈ ગઈ કે મારા ત્યાં આરો લગાવવા એની મશીન લીધું એટલે, બરાબર। હવે મારા ત્યાં TDS હાઈ હતા એટલે 2-3 વખત આવવું પડ્યું, મેન્ટેન નતા થતા TDS, એટલે 3 દિવસ સતત આવ્યા, આપણી જોડે 3 દિવસ આવે એટલે કાફી, બરાબર, એટલે જોડાઈ ગયા। તો આમાંથી 17 લાખ રૂપિયા કમાવા દરે 250 લોકોની ટીમ છે, બરાબર, આરોમાંથી છૂટ્યા મહેશભાઈ। પરેશભાઈ જાની બેંકમાં જોબ કરતા હતા, મેનેજર હતા, 15 લાખ રૂપિયાથી વધુ સેલેરી હતો, બરાબર, આમાંથી 17 લાખથી વધુ ઇન્કમ લઈ ચૂક્યા છે। આજે મહિને 2 લાખ રૂપિયાથી વધુ ઇન્કમ ઓલરેડી આ ધંધામાંથી, આપણા બિઝનેસમાંથી છે। હા, આ છે કમલભાઈ નંદરામાણી, બરાબર, મેડિકલ હોલસેલર છે ડીસામાં, રિયલ એસ્ટેટ બ્રોકર, બરાબર, ઓળખો છો કયા બધા કમલભાઈ? કાલે રાત્રે તમને એક વે બતાવ્યો, ફાસ્ટેસ્ટ 682-3, બરાબર। એ ફાસ્ટેસ્ટ એટલા માટે એમનો ટોપિક આપ્યો હતો કેમ કે મારી ટીમમાં સૌથી ફાસ્ટેસ્ટ 6 બનવા વાળા એ હતા, બરાબર। તો ફરીથી પ્લેટિંગ છે એમના માટે, બરાબર। પ્રેમભાઈ પ્રોફેસર જીસેટ, બરોબર જ લખ્યું, જીસેટ એન્જિનિયરિંગ વિદ્યાનગર, સાચું લખ્યું ને પ્રેમભાઈ સાહેબ? આપણા કાલે તમને પ્રોડક્ટ બતાવી, બરાબર, આજે 3 લાખ રૂપિયાથી વધુ ઇન્કમ આમાં લઈ રહ્યા છે, બરાબર। ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે, કાલે તમને બિઝનેસ પ્લાન બતાવ્યો, મિતેશભાઈ પટેલ, સોરી જતીનભાઈ આપણી વચ્ચે બેઠા છે, બરાબર। હવે આ બધાની તમે ક્વોલિફિકેશન જોતા જોતા એવું વિચારજો કે તમારે ખરેખર કરવાની જરૂર છે કે નહીં, એમ, બરાબર। હા, એટલે બધું રિલેટેડ કરજો, ખાલી એકલા ફોટા ના જોતા, બરાબર। હર્ષદભાઈ બિઝનેસ છે એમનો સિરામિકનો મોરબીમાં, અને આ બિઝનેસમાં આપણી સાથે આવ્યા, આજે આપણી ઇન્કમ છે એમની 6 રેન્ક અચીવ કરી દીધી છે, બરાબર। ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ મિતેશભાઈ પટેલ, પ્રેક્ટિશનર CA ડીસા, ક્યાં ગયા? હા, કાલે ટોપિક લીધો તો ભાઈ નહીં, એટલે તમે પાછળ ના જોવો તો ઓળખાણ પડી જાય, બરાબર। તો આજે ડીસામાં સાહેબે સૌથી પહેલા મારી સાથે કામ ચાલુ કર્યું હતું, બરાબર। આજે લગભગ 700 આજુબાજુની ટીમ છે, એમની ટીમ સાઈડ છે। શ્રી ખોડિયાર ટ્રેડિશનલ બિઝનેસ સાથે બંને મિત્રો જોડાયેલા હતા, અમારી સાથે કામ ચાલુ કર્યું, આજે મહિને 2.5 લાખ રૂપિયાથી વધુ કમાય છે, બરાબર। આજે સંજયભાઈ પટેલ, એમનો હોટેલ, રેસ્ટોરન્ટનો, રિયલ એસ્ટેટનો, ફાઇનાન્સનો ઘણા બધા બિઝનેસ છે, છતાં બી અમારી સાથે આ બિઝનેસમાં છે। કેટલા લોકો ઓળખે છે? સંજયભાઈ મળેલા છે, ઓકે, મેક્સિમમ લોકો, બરાબર। ફૂલ ટાઈમ આજે જાપાન ગયા હતા, હમણાં જાપાન ફેક્ટરીની વિઝિટ કરી આવ્યા, બરાબર, કે જ્યાં આપણો મશીન બને છે, હેડ ઓફિસની વિઝિટ કરી આવ્યા। મનુકાકા ખેડૂત, 20-25 ગાયો રાખતા હતા, અને આ ધંધામાં આવ્યા, કીધું ગાયો બંધ કરાવો, બરાબર। આજે 450 થી વધુ બિઝનેસ પાર્ટનર છે એમના। સુમિતભાઈ, આવો સુમિતભાઈ, જોરદાર તાલી થઈ ગયા સુમિતભાઈ। પેલો જયનો ફોટો હતો ને એવો જ સુમિતનો ફોટો હોત, જો એક એંગલમાં ના આવ્યો હોત તો જયની જગ્યાએ નામ હોત સુમિત। એને બી એન્જિનિયરિંગ કર્યું, ઇલેક્ટ્રિક એન્જિનિયર, બી ઇલેક્ટ્રિક એન્જિનિયરિંગ થયા પછી જોબ કરતા હતા 18,000 રૂપિયામાં। સુમિતભાઈને અમે મળ્યા, એમના અંકલ મારી જોડે હતા સુમિતભાઈના, અમે બધા સુરત એમના ઘરે ગયા, સુમિતભાઈના બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી બતાવી,
એમના પપ્પા કનુભાઈ બહુ પોઝિટિવ વ્યક્તિ છે, એમની જોડે બેઠેલા હતા. આખો પ્રોજેક્ટ બહુ ગમ્યો. ઘણી વખત મારી ગેસ્ટ મિટિંગમાં ઉદાહરણ આપતો હોય છે, એટલે ઘણાને એવું લાગે આર્ટિફિશિયલ એક્ઝામ્પલ આવતા છે, પણ આ રિયલ છે, તમારી સામે જ છે. ત્યારે સુમિતભાઈ આ પપ્પા એવું કીધેલું કે પ્રોજેક્ટ તો બહુ સારો હશે, પણ આ ધંધામાં રોકાણ કરવાની અમારી કેપેસિટી નહીં. ઓલરેડી અમે 8 લાખ રૂપિયાના દેવામાં એફોર્ડેબલ હાઉસમાં રહેતા હતા સુરતમાં. બરાબર. આજે કનુભાઈ એવું કીધું કે 8 લાખ રૂપિયા દેવું. કનુભાઈની પાર્થ આમનો નાનો ભાઈ છે, ટોયોટા ગેરેજમાં જોબ કરે છે. કનુભાઈ કોઈ મશીન ચલાવતા હતા, જે આપણે કપડાનું આવે ટેક્સટાઇલમાં, અને સુમિત એક જગ્યાએ જોબ કરતો હતો. ત્રણની ભેગી સેલિંગ કરી, એ તો 60,000 રૂપિયા નહોતી થતી. આના બિઝનેસ અમે એમનું બતાવ્યું. એટલે કનુભાઈ મેં એક જ વાક્ય કીધું, 8 લાખ રૂપિયા દેવું છે તો કાલથી એવું બોલવાનું ચાલુ કરી દો કે 10 લાખ દેવું છે, બીજું 2 લાખ કરી દો. આવું જ કીધેલું. પૂછવાનું 8 લાખના 60,000 માંથી 8 લાખ પૂરા થવાના નથી. અને એ વાત એમને સાચી લાગી. એમને બીજા 2 લાખ એરેન્જ કર્યા. સુમિત અમારી સાથે જોડાયો. આજે લગભગ 27-28 મહિના આ ધંધામાં કમ્પ્લીટ કર્યા. ઇન્કમ કેટલી કરી એ સુમિતના મોઢે આપણે સાંભળી લઈએ. 48 લાખ, 40 લાખ રૂપિયા. ખાલી રિલેટેડ કરો કે આ ઉંમરના કેટલા બધા લોકો તમારા સમાજમાં, હા, તમારા ગામમાં, તમારા ઓળખીતામાં છે. ના બધા નશાની જરૂર છે. એક ઓપોર્ચ્યુનિટી તમે બતાવો એમ, એ લોકો બી તમારી ઓપોર્ચ્યુનિટી કેચ કરશે. આજે મને આ બિઝનેસમાં છું, મને ગૌરવ છે કે મારી ટીમમાં જેની ઉંમર 18-20 વર્ષથી 30 વર્ષ વચ્ચે છે ને, એવા 1000 છોકરાઓ. કેટલા? બરાબર. જે સુમિતની જ્યાં મહિને 50,000, લાખ, 2 લાખ, 5 લાખ રૂપિયા કમાય. અને સુમિતની ટીમમાં તો 80% યુથ જ છે. 80% ભૂકા કાઢના ખાઈ ટીમ. હા, આજે તમારી આ જે ટીમ છે દોસ્ત લાઈને શૈલેષભાઈ, સુમિતભાઈને આનાથી કશું લેવા દેવા નહીં. તો 2 દિવસથી સુમિતભાઈ આપણી વચ્ચે છે, તો એના માટે બી એક વખત સુમિતભાઈ માટે જોરદાર તાળી જોઈએ. કેટલું કમિટમેન્ટ છે આ બિઝનેસ માટેની વાત કરું તો કાલે સુમિતભાઈ લગભગ સવારે અહીંયા 5:30, 4:30, 6:30 આવ્યા, સવારે 6 વાગે. તો એના આગલા દિવસે રાત્રે મેં ફોન કર્યો 12 વાગે. કેટલા વાગે? તો 12 વાગે બરોડા એક ફોલોઅપમાં બેઠેલા હતા. કેટલા વાગે? રાત્રે 12 વાગે. સવારે 6 વાગે અહીંયા હતા. સમજી લો 6:30. બીજું માણસો તો માનું કાઢી બધી રવા દે, મારેલું લાંબુ નહીં થયું. બરાબર. તો એક ઇનેજિક સેલ્યુટ બનો સુમિતભાઈ માટે. હા, યસ. Seconds, जोरदार क्लैपिंग सुमितભાઈ માટે જોરદાર. થેન્ક્સ ફોર કમિંગ સુમિતભાઈ. જમરુસિંહ ચૌહાણ પોતે ગવર્મેન્ટ ટીચરના જોબ હતા. આજે આફ્ટર 23 યર જોબ, એમની સેલેરી 85,000 રૂપિયા છે. અહીંયાથી કેટલા રૂપિયા છે? હું આ જ વસ્તુ સમજાવવા માંગુ છું. હું અહીંયા જે સમજાવવા માંગુ છું કે આ 85,000 શું કરતા જમરુસિંહ સાહેબ? એમને 4 બાળકો છે, તો આ 4 બાળકોની સ્કૂલની ફી ભરતા, 4 બાળકોના કપડા લાવતા, 4 બાળકોના લગ્ન કરતા, 4 બાળકોને ભણાવતા, ઘરનો હપ્તો ભરતા, ગાડીનો શું કરતા 85,000માં? તો મહિનાની 85,000 રૂપિયા સેલેરી. શું થાય 85,000? કશું જ નહીં. સમજી લો તમે. આજે આ બિઝનેસમાં આવ્યા, બીજા 3-4 લાખ રૂપિયાની ઇન્કમ અમારી છે, તો પેલી 85,000 ઇન્કમ એમને ખાલી સર્વાઈવ કરશે. બાકી આ 3 લાખ રૂપિયા શું કરશે? એમના સપના, એમના ડ્રીમ્સ કમ્પ્લીટ કરશે. બરાબર. આ જો મહેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ જોબ પ્રિન્સિપાલ લો કોલેજની અંદર પ્રિન્સિપાલ હતા, અત્યારે રિઝાઇન કરી દીધું, ફૂલ ટાઈમ છે આ ધંધાની અંદર. 2 વર્ષથી છે, મોર ધેન 1 કરોડથી વધુ ઇન્કમ લઈ ચૂક્યા છે આ બિઝનેસમાં 2 વર્ષની. બરાબર. આ છે શૈલેષભાઈ, JSW ડિપાર્ટમેન્ટમાં જોબ કરતા હતા. 26 લાખ રૂપિયા એટલો જ સેલેરી લીધો શૈલેષભાઈ. 26 લાખ જ. એટલે 26 લાખના સેલેરી વાળા બી કામ કરે છે, હું એમ કહેવા માંગુ તમને. બરાબર ને? એટલે ઘણા શું 50-60,000 રૂપિયા કમાતા હોય, એમાં સેટિસ્ફાઈડ થઈ ગયા હોય. તો આપણે તો મહિને 80,000 રૂપિયા આવક છે, આપણે શું કામ દોડવું પડે? આજે બિઝનેસમાં 2 વર્ષમાં
1,30,00,000 नेट प्रॉफिट ले चुके हैं खाली नहीं। અહીંયા એક એવી આરટીપી હતી ફર્સ્ટ ટાઈમ કે જેમાં શૈલેષભાઈ, અહીંયા કેટલા લોકો એવા છે કે જે હજુ જોઈનિંગ કરવાનું બાકી છે ને આયા છે, એવા કેટલા લોકો છે? હા, તમે ધ્યાનથી સાંભળજો સ્ટોરી. આવા જ એક આરટીપીમાં શૈલેષભાઈ આ જ હોલમાં આવ્યા હતા પાછા. હો, પૂછો. આ જ હોલ કઈ સપ્ટેમ્બર 8 सितंबर 2020 यही हॉल में शैलेष भाई आए थे आपकी तरह. उन्होंने अभी डिवाइस नहीं लिया था, उनको कोई लेके आया था कि आप आओ देखो. सोचो आप क्या हो सकता है. खाली 8 सितंबर 2020 के दिन आपके तरह एसी 4 में आके बैठे थे इसी हॉल में. अभी डिवाइस नहीं लिया था, डिसीजन लेना बाकी था. उनका कोई दोस्त उनको लेके आया कि आओ देखो, आपको अच्छा लगे तो आप करना. और उन्होंने इस हॉल में बैठ के डिसीजन लिया. सोचो आप कि 2020 से आप 2023 मतलब 2.5 साल के अंदर क्या कमा लिया? 1,30,00,000. इधर जितने लोग नहीं आए बैठे हैं ना, वो इस चीज को रिलेटेड करना कि आपका एक डिसीजन आपके साथ आपके जीवन में कितना बदलाव ला सकता है. आपका एक डिसीजन सिंगल शैलेष भाई अकेला भी डिवाइस नहीं लिया था. और आज देखो कि उनकी ही पूरी टीम की क्या हो रही है? आरटीपी हो रही है. एक बार शैलेष भाई के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए. जबरदस्त. लेकिन ये चेयर में बैठे बैठे उन्होंने डिसीजन लिया था. हाँ, घेर जन कहूं विचार कहूं એવું નહોતું કીધું. હા, ओके. अंकित भाई है पालनपुर बनासकांठा से है. हमारा आइसक्रीम का उनका एजेंसी था और भी 1-2 डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी. हमारे साथ काम चालू किया. 2 साल में 2 करोड़ से ज्यादा इनकम ले चुके हैं. हर्षद भाई चक्रवर्ती एडवोकेट है, हमारे साथ जुड़े 2.5 करोड़ से लगभग इनकम ले चुके हैं. ये है राजेश भाई जो बिजनेस में होंडा का शोरूम है, एजुकेशन बिजनेस है, कॉलेज है, सॉल्ट का बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस है. हमारे साथ इस बिजनेस में आए. 3.5 साल में 2.5 करोड़ से ज्यादा इनकम लिया है. जितेंद्र भाई पटेल इस बिजनेस में 4 करोड़ से ज्यादा इनकम ले रहे हैं. कल जो आपको रॉयल्टी की बात की, रॉयल्टी वाली जो बात समझाई थी कल आपको कमल भाई ने, वो रॉयल्टी पे वो पहुंच गए हैं. बराबर. आज $6,500 रॉयल्टी. उनकी लास्ट 3 महीने की इनकम जो हमने देखी तो एवरेज महीने की $15,000 महीने की इनकम है लास्ट 3 महीने में. मतलब लास्ट 3 महीने में $45,000 आए उनके अकाउंट में. बराबर. और वो क्या करते थे? तो क्रेडिट सोसाइटी में 15,000 रुपये में जॉब करते थे. इस बिजनेस में आए उसके पहले 15,000 महीने की आवक थी और आज 15,000 ही आवक है, लेकिन वो रुपये में थी और ये डॉलर में. खाली फर्क इतना है. बराबर. भरत भाई पटेल है जिनका $13,500 रॉयल्टी है महीने का. बराबर. 5 करोड़ से ज्यादा इनकम 4.5 साल में इस बिजनेस में ले रहे हैं. मतलब 12 लाख प्लस इनकम है महीने की. अरविंद भाई सर है जो 10 करोड़ से ज्यादा इस इनकम इस बिजनेस में से ले चुके हैं. बराबर. महीने की 25 लाख से प्लस इनकम है. $25,000 खाली रॉयल्टी है. सोचो आप, महीने की बात करो, साल की नहीं. हाँ, यही बिजनेस में आप हो. नागेश्वर शुक्ला सर 25 करोड़ प्लस इनकम ले चुके हैं. बराबर. महीने की 50 लाख प्लस इनकम है. $25,000 रॉयल्टी है. अमित भाई पटोड़िया 50 करोड़ प्लस इनकम इस बिजनेस में से ले चुके हैं. हाँ, राजन मांजरेकर सर 100 CR 7 साल में. हमें 90 लिखे, पुराना है. अभी उन्होंने एक रैंक अचीव किया जो टॉप रैंक है इंडिया की. 6 से 2-6 जो 6, 7 और 8 आता है ना, इसमें 6. सोचो इसमें एक इनकम जो कल आपको बताई थी सारी इनकम है जतिन भाई ने, उसमें एक इनकम है टाइटल बोनस. जब हम टाइटल चेंज करते हैं तो कंपनी वो इनकम देती है. जैसे 6 से बनते तो 2 लाख देती है, 6 से 2 बनते हैं तो 4 लाख देती है, -2 बनते तो 8 लाख देती है, 3 बनते तो 16 लाख देती है. ये 8 तक जो देती है ना कंपनी, वो 11 करोड़ रुपया देती है. कितना रुपया? 11 करोड़. तो मैं आपको सिंपल समझाता हूं कि राजन सर 7 साल में कहां पहुंचे? 6 तक. तो अभी 1 साल में कहां पहुंच जाएंगे? 8 तक पहुंच जाएंगे. एग्री करते हो? तो 8 साल में खाली एक इनकम, दूसरी इनकम छोड़ दो, कितनी हुई? 11 करोड़. तो 8 साल से डिवाइड करो तो कितना हुआ महीने का? हाँ, लगभग 1 करोड़ तो खाली टाइटल बोनस का आया कि नहीं आया? मेरे सीनियर है भरत भाई पटेल जो अभी 4 है, 52 मंथ. उनको इस धंधे में कितना समय हुआ? 52 मंथ हुआ. समझ लो 52 मंथ में 50% पहुंच गए. मतलब 4 मतलब कितना हुआ? परसेंट 50%. 8 तक हमारी रैंक है.
तो अभी 52 मंथ हुए 4 तक पहुंचने में, तो अब क्या क्या लगता है कि 8 पहुंचने में 52 मंथ होंगे? नहीं होंगे, कम होंगे, बराबर ना? तो सोचो कि 11 करोड़ तो खाली वही आएगा जो टाइटल बोनस है, मतलब महीने का वर्ष साल का 1.5 करोड़ रुपया तो खाली टाइटल बोनस मिलेगा आपको अगर एवरेज निकालोगे तो। आप सोचो कि आप जो काम कर रहे हो वो काम में आप आने वाले 8 साल में साल की 1 करोड़ रुपया इनकम ले सकते हो? अगर उसका जवाब ना है तो बहाना बनाना छोड़ो और आ जाओ। सारे 100 करोड़ क्लब वाले हैं। लास्ट बात मैंने जो की थी सिक्योरिटी की, बराबर है। सुरेश भाई राहुल, इनकी फैमिली से बहुत सारे लोग इधर आए हैं जो मिले हुए हैं। लास्ट टाइम हमने जो आरटीपी की थी, कितने लोग हैं जो मिले हुए थे? ओके, तो आज सुरेश भाई का देहांत हो गया 2 डिवाइस सेल करने के बाद। 2 डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके पास और सुरेश भाई का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया। आज सुरेश भाई का रैंक कौन सा है? 6 है। मोर देन 3 लाख इनकम उनके अकाउंट में हर महीने जा रही है। उनके बेबी बच्चे को कभी भी पैसों के लिए किसी के आगे हाथ लंबा नहीं करना पड़ता। और वो मैडम, उनका नाम है पूनम बहन, अभी धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। अभी मतलब कि जो कटलाल अभी एक मीटिंग कर गए खुद जाके, जो लेडीज उधर थी उनकी खुद की, मतलब धीरे धीरे वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम बोलते नहीं उनको, लेकिन उनको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि इतना पैसा अगर धंधे से मेरे घर में आ रहा है मेरे अकाउंट में, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। मतलब राजकोट एक मीटिंग करने गए थे, कटलाल एक मीटिंग करने गए थे, खुद वो बोलते कि मैं जाते। सोचो आप, ये रियल सिक्योरिटी है। अगर सुरेश भाई ने 3 लाख रुपया हमारे धंधे में इन्वेस्ट नहीं किया होता और इनकी मिसेज को मंगलसूत्र लाके दे दिया होता और सुरेश भाई का डेथ हो जाता तो क्या होता? मंगलसूत्र तो पहनना बंद और वो भी क्या होता? बिक जाता। लेकिन सुरेश भाई ने क्या किया? सुरेश भाई के पास पैसे नहीं थे इस बिजनेस करने के लिए। सुरेश भाई के पास पैसे नहीं थे, वो कार्टेज रिफिल का काम करते थे। 50,000 रुपया सेविंग था। तो आपको मालूम है वो पैसे कहां से लाए थे? मंगलसूत्र बेच के। रियलिटी आप पूछना पूनम बहन को, जो लेडीज इधर बैठी है, आप कॉल कर सकते हो उनको। उनका वो गहना बेच के वो पैसे लगाए थे इसमें। अभी हर महीने 2 मंगलसूत्र पूनम बहन ले सकती है। हेलो, समझ में आ रही है चीज? हाँ, ये सिक्योरिटी है। हाँ, ये देखो चंदू भाई पटेल सुमित भाई की टीम से ही है। अंकल हमारे साथ ज्वाइन हुए ना, तो उनका 39 ईयर का एक बेटा ऑलरेडी कैंसर में एक्सपर्ट हो गया। तो उनके 2 बच्चे थे, उनकी मिसेज थे, उनके बेटे की जो विधवा, और अंकल हमारे साथ जुड़े। 2nd कोरोना में अंकल का भी डेथ हो गया। खाली 2 या 3 डिवाइस थे, आज 65 प्लस डिवाइस है। मतलब महीने का 50-60 हजार रुपया उनके अकाउंट में जा रहा है। अभी हमारे आने वाले 2-3 महीने में इनका आईडीएम 6 से निकल रहे हैं। मतलब महीने का कम से कम 3-4 लाख रुपया उनके अकाउंट में हर महीने जाना चालू हो जाएगा। सोचो आप, ये रियल सिक्योरिटी है। ऐसी कोई व्यवस्था आप जो काम कर रहे हो उसमें है? अगर उसके जवाब ना है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आप चालू करो, इसको इग्नोर मत करो। नरेंद्र सिंह चौहान अभी लेटेस्ट है, लास्ट मंथ की 9 तारीख को हम दोनों जो ऐसे एक सेमिनार में एक साथ थे, और 13 तारीख को उनको एक रोड एक्सीडेंट हुआ। लास्ट मंथ की बात कर रहा हूं। धानेरा थराद जो रोड है वो रोड पे, और उनका डेथ हो गया वहीं। 1 साल का एक बेटा है, 3 साल की एक बेटी है। सोचो आप क्या हालत होगी। लेकिन उन्होंने ऐसा बिजनेस किया था कि जो बिजनेस में वो अकेले नहीं थे, उनके 225 पार्टनर भी हैं इस धंधे में, बराबर ना? तो आज लास्ट मंथ जो महीने में उनका देहांत हो गया ना, उस मंथ में उनकी इनकम है 18 लाख रुपीस, 18 लाख रुपया महीना मिला। पूरा वर्ल्ड में दर महीने में कंपनी की पूरी वर्ल्ड की कंपटीशन चलती है। आप ऑनलाइन आपके मोबाइल में अभी खोल के, जो लोग ज्वाइनिंग है ना वो देख सकते हो अभी खोल के आपके मोबाइल में। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी शिक्षे है ना, उसमें पूरी दुनिया में उनका लास्ट मंथ 13 नंबर पे है। वो पूरी दुनिया में जितने शिक्षे उतना अच्छा सेल है लास्ट मंथ का। सोचो इतना पैसा उनके अकाउंट में आएगा उनके मिसेज के कि वो आप सोच ही नहीं पाते दोस्त, बराबर। अभी 6 से 2 बन रहे, ये महीने में 6 से 2 बन रहे, उनकी रैंक चेंज हो रही है। सोचो आप, ये सिक्योरिटी है, कहां से मिलेगी आपको? ये आपके राजस्थान के ही है। कहां के? राजस्थान में माखासर।
हाँ, भूपेंद्र सिंह तलवार, सही। सोचो, लेकिन रहते थे इधर भी इन्होंने थोड़ी बहुत जमीन लेके रखी थी और इधर खेती बेटी इनके फादर करते थे और ये काम के साथ हमारे साथ जुड़े हुए थे, बराबर। ये है उपदेश मलिक सर, इनका भी एक्सीडेंटली डेथ हो गया था। तो आज हम लास्ट टाइम जो कंपनी का एनिवर्सरी था, जो भी अक्टूबर में होने वाला है, बराबर, तो उसमें उनकी 2 बेटियां आई थी, उनके साथ हम इधर हमारा फोटो है। तो सर का इस दुनिया में नहीं है सर, फिर की महीने का 2 करोड़ 2 CR से प्लस इनकम उनके अकाउंट पे जा रहा है। सोचो, महीने का। हाँ, ये रियल सिक्योरिटी है दोस्तों, बराबर। तो ये सब हमारी वजह से नहीं हुआ है। ये कैसे हुआ? क्योंकि ये लोग राइट जगह पे आए, ये लोगों ने राइट टाइम पे आए, ये लोगों ने राइट चीज में आए, ये लोगों ने राइट नॉलेज लिया, इन लोगों ने राइट स्किल सीखी, इन लोगों ने राइट डिसीजन लिया, बराबर ना। तो यहां तक ये सब लोगों को बेनिफिट मिले और इंडिया टुडे इज राइट प्लेस। ये बिजनेस करने के लिए आज इंडिया एक राइट जगह है। क्यों? कि इंडिया के अंदर अभी तक 1,75,000 लोग खाली इस धंधे से जुड़े हैं। जुड़ने वाले की जो अपॉर्चुनिटी है वो कम से कम 10, 15, 20 करोड़ लोग इसके साथ जुड़ेंगे फ्यूचर में। आप इस सब के आप लीडर होंगे, सोचो आप। पहले 1,75,000 में अगर आप हो पूरे भारत में, तो सोचो आप कि आप कितने ऊपर हो। सोचो, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है दोस्तों, राइट प्लेस है धंधा करने का। आपकी खाली डेली 2 to 3 आवर्स आपको स्किल डेवलप करने के लिए और ये धंधा करने के लिए देना है। ट्रिलियन पॉसिबिलिटी और ह्यूमन बीइंग, हम आदमी है, इंसान है, और भगवान ने हमें ट्रिलियन पॉसिबिलिटी दी है दोस्तों। हाँ, ट्रिलियन पॉसिबिलिटी। लेकिन हम क्या करते हैं? हाँ, वी आर अंडर प्लेइंग। हमें जो भगवान ने संभावनाएं दी है ना दोस्तों, पशु को, पक्षी को, प्राणी को, किसी को दिए? आदमी को दिए। हम आदमी इंसान है, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम अंडर प्लेइंग करते, क्योंकि करने के लिए जो एक्शन लेनी है वो एक्शन लेने की हमारी तैयारी नहीं होती है, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं दोस्तों। मैंने करोड़पति बनने की बात की, करोड़पति बनने की बात की, फिर से बोलता हूं दोस्तों, 80 to 90% पीपल जो आज करोड़पति है, जो करोड़पति पैदा नहीं हुए थे, वो पैदा होने के बाद करोड़पति बने। आपको ऐसा लगता है कि मैं करोड़पति बन सकता हूं? हाँ, बन सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी करोड़पति हैं उसमें से 90% करोड़पति पैदा नहीं हुए थे, वो पैदा होने के बाद करोड़पति बने। तो आप इस हॉल में बैठे हुए हो, तो आप क्यों नहीं? अगर वो 90% बन सकते तो आप क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं। हमें तय करना है कि मुझे यहां पहुंचना है, इसके लिए जो भी एक्शन लेनी पड़े वो लेने के लिए मैं तैयार हूं। जो जानना पड़े वो जानने के लिए तैयार हूं, जो सीखना पड़े वो सीखने के लिए तैयार हूं, बराबर। करना क्या है? इफ यू नो मिलेनियर नो, इफ यू डू मिलेनियर डज, डू यू हैव मिलेनियर। मतलब आप वो जानो जो मिलेनियर करोड़पति लोग जानते हैं, वो करो जो उन्होंने किया, तो आपको वो मिलेगा जो उनको मिला। लेकिन आपके आजू बाजू वाले लोग क्या कर रहे हैं वो देखोगे और वो करोगे। कि वो रोज रात को 5 बजे घर आ जाता है, आप क्यों 8 बजे आते हो? समझ, वो टाइम से खाना खा लेते हैं बाजू वाले, आप क्यों नहीं आते हो? हाँ, क्योंकि वो आपके जैसी लाइफ जी रहे हैं, सब मिडिल क्लास, मीडियोक्रिटी। तो उनको मत देखो, उनको देखो जो मिलेनियर है, वो जो करते हैं वो करो, वो जो जानते हैं वो जानो, उन्होंने जो किया है वो करो, तो वो लाइफ जियोगे आप। और आपके अड़ोस पड़ोस में देखोगे ना, तो आपकी, और वही करोगे, उनकी कॉपी करोगे, तो आप वैसे ही लाइफ जियोगे जैसे वे जीते, वो लोग जी रहे हैं, बराबर। आपको खाली आपका क्या यूज करना है? ये CCC फॉर्मूला, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस लगाना है खाली। फूड कमिटी, कॉमन सेंस, मैं खबर है તમને બધાને પૂછે, चिंता नहीं। કેટલા વાગે? એક ટાઈમ છે ને? હા, કોમન સેન્સ શું યુઝ કરવાનું છે? કોમન સેન્સ। આ બધી વાતો કરી, હવે તમારું કોમન સેન્સ લગાવો તમે, તો તમારે કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ, બરાબર? તમારું કોમન સેન્સ આજે ખાતા ખાતા લગાવો, હુતા હુતા લગાવો, તમારે શું કરવું જોઈએ તમે લગાવો।
હું કહું એટલે નહીં, તમે વિચારો, બરાબર? કોમન સેન્સ, કોમન સેન્સ તમને એવું લાગે કે કરવું જોઈએ તો શું કરો તમે? કમિટમેન્ટ. કેવું કમિટમેન્ટ હોવું જોઈએ? 100% કમિટમેન્ટ હોવું જોઈએ. ઘણાનું કમિટમેન્ટ કેવું હોય? 50%, 60%, 80%. સાહેબ 80% તો થઈ જ જશે, 90% થઈ જશે. કમિટમેન્ટ 80%, 90% હોય અને કમિટમેન્ટ ના કહેવાય. कमिटमेंट को ना जो शू है 100% हो, मतलब हमारा जो बॉडी है वो 100% है, बराबर? अब ये इसमें से एक हाथ निकाल देते चलो 90%, तो चलेगा? हेलो, दूसरा निकाल देते चलो 80%. कमिटमेंट 100% करो कि मुझे ये करना ही है और इसके लिए जो भी करना पड़े वो करने के लिए मैं 100% कमिटमेंट, 100%. और क्या करनी है दूसरी? अरे हिम्मत. બેગ લઈને જવાની શું કાઢો? હિંમત. ઘણા બેગ ઉઠાવવાની હિંમત નહીં. 1.5 કિલો વજન ના હોય સાહેબ. હું કામ ડરો છો? બરાબર? હિંમત કરો ડેમો કરવાની, હિંમત કરો લોકોને વાતો કરવાની, હિંમત કરો એનો વિશ્વાસ આપવાનો, હિંમત કરો, બરાબર? આ ટ્રિપલ સી ફોર્મ્યુલા, બરાબર? Why do people still continue to live a donkey life? हाँ, सबसे पहले क्या? नॉलेज. इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो क्या लेना है? नॉलेज. हाँ, नो नॉलेज इज गुड बट हाफ नॉलेज इज डेंजरस. जितना हो सके नॉलेज बटोरो, बराबर? और आगे बढ़ो. लैक ऑफ एनवायरमेंट, ये सबसे बड़ी चीज. आपको क्या करना है? एनवायरमेंट में रहना है. आप क्या कर लीजिए, आरटीपी में आए, अभी एनवायरमेंट में हो आप एक अच्छी, तो आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, लेकिन ये एनवायरमेंट छोड़ के जब आप दूसरे एनवायरमेंट में जाओगे, जस्ट लाइक घर पे गए, तो वहां एनवायरमेंट चेंज होगा, लोग चेंज हो गए, बातें चेंज होगी, तो आपका जो सोच है वो भी क्या हो जाएगी? वो नहीं होनी चाहिए. आपको कंटिन्यूसली एनवायरमेंट में रहना है. और रहने के लिए क्या करना है? हमारी जो भी ओटीपी होती है, आरटीपी रहती है, जूम पे प्रशिक्षण रहता है, जो भी हमारा जो एनवायरमेंट जहां से आपको अच्छी एनर्जी मिलती है वो एनवायरमेंट में रहने का आप ट्राई करो. आप लोगों को एनवायरमेंट में लाओ जिन लोगों को आपको साथ जोड़ना चाहते हो. ये सबसे बड़ी चीज है. देखो हम आपको इधर कितने दूर दूर से सब लोग आए, बराबर? कुछ लोग बाड़मेर से आए हैं, कुछ लोग विद्यानगर से आए हैं, बराबर ना? अलग सिटी से सारे लोग आए हैं, मोरबी से आए हैं, मतलब 300 से लेके 600-700 किलोमीटर से लोग इधर आए. एग्री करते हो? बराबर ना? बॉम्बे से आए हैं, बराबर? मुंबई से. सोचो आप, तो आपको इस जगह पे लाने का मतलब क्या है? ये चीज में जूम पे भी आपको सिखा सकता हूं, लेकिन हाँ, एनवायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बराबर? तो हमारे बिजनेस में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? एनवायरमेंट. हमें इसके अंदर रहना है, प्रॉपर एनवायरमेंट हमें खुद को देना है और हमारी टीम को भी हमें देना है, तभी जाके आपकी टीम का और आपका प्रोग्रेस होगा. और लैक ऑफ बिलीफ, कुछ लोगों का क्या होता है? बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता. आज मैं करोड़पति बनने की बात कर रहा हूं, आज ऐसा एक चेयर पे बैठे बैठे लगता है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन अंदर डर भी लगता है कि मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा. हाँ, अंदर से फील क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, बराबर? डर जो डर है ना दोस्तों, ग्रीन सिग्नल है. हाँ, फियर वेज फेथ, डर के आगे जीत है. हाँ, तो जो डर जिस चीज का लगता है ना, तो वो पहले करो कि वो ग्रीन सिग्नल है, वो रेड सिग्नल नहीं है. जो डर है वो, उसको एक बार आप जंप कर लिया ना आपको, तो बहुत अच्छा फील होगा. उसको जंप करो, जो डर लगता है, जो चीज टच करो उसको, वो पहले करो, बराबर? तो आप 100% इसमें सक्सेस हो सकते हो. तो आज कितने लोग ऐसे हैं जो कमिटमेंट करते हैं आज कि मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं, बराबर? रेडी. तो दोस्तों इधर हमें 2 काम करने हैं आज. जो लंच ब्रेक के अंदर लिस्ट वालों आप ही दिए काम, ये पेपर तैयार करो. मैं आपको एक देता हूं लिस्ट, जो मैंने बोला था कि ऐसे 20 लोगों को आपको नाम लिखने हैं.
ऐसे 20 लोगों के नाम कि जो ये 4 कैटेगरी में आते हैं। कौन सी? जो मैंने आपको इन्विटेशन के लिए सिखाई थी, जो इनकम बढ़ाना के सोच रहे हैं, जो मिडिल क्लास ट्रैप करने का है, जिनको छोटी सी इन्वेस्टमेंट में एक बिजनेस करना है, बराबर। ये जो कैटेगरी में आते हैं, ऐसे 4 लोगों को, 4 कैटेगरी में आते हैं, ऐसे 20 लोगों का आपको लिस्ट बनाना है। ये जो लंच टाइम हम ब्रेक दे रहे हैं, तो खाना ही है, खाना खा के सोना नहीं है, बराबर। रूम में जाके खाना खाने के बाद जो सेशन, बढ़िया सेशन आपके लिए, लेकिन आपको खाना खाते खाते उसके बाद आपको 20 लोगों का नाम इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है कि कौन से 20 लोगों को हम इस धंधे में आने वाले 20 दिन में इनवाइट करेंगे। ये धंधा हम 20 लोगों को दिखाएंगे, अपॉर्चुनिटी, बराबर ना। ऐसे 20 लोगों का आपको आज लिस्ट बनाना है, बराबर। लंच लेना है, साथ में लिस्ट बनाना है। 2 काम एक साथ करने हैं।